Good evening, everyone. Thank you all for joining. Hope I'm audible. Okay. So, guys, you can unmute yourself. This is uh, this is an open call. I would like to present something which I have learned over the period. Let me also introduce myself a bit. Okay, one second. Okay, fine. So let me introduce myself. My name is Rishabh Kale. I'm a founder of RK Advisory. I have been an analyst and of my entire career. It's been around 8 years that I've been working into this industry. I have also placed many students, to be precise, 56 in the last 1 year into equity research roles. So RK Advisory didn't start as a training institute. It started as an investment fund where I invest my money into stock market and we generate returns for myself as well as my friends, families. I became a professor at Wellington Institute of Business Management. Then I realized that to get into equity research, students are not that trained into practical knowledge. They have just given bookish knowledge. And then I started this. I started training students. I also take them as intern at my place, specifically only MBA students because of their 2 months mandatory internship. So I try to place them. I take them as an intern. I try to place them. Plus, I do a training where we do an internship program for 3 months, and then we try to place them. So, likewise, we have done 56 placements. Since I've worked in the industry for last 10 years, I have a lot of connections. Majority of the placements have happened because of my referrals. So this is what we do. And one more thing I would like to tell you, there is a myth against students that saying that, sir, I am not from a good MBA college. I'm not a CA. I'm not a CFA. That's why I'm not able to get into equity research roles. But that is a myth. I am not a CA. I am not a CFA. Nor I am an MBA from any tier 1, tier 2 college. My college is a tier 4, tier 5 college. Still, I made into equity research. Yes, the starting was a tough at the start. It is very difficult to get into these roles. You have to get a step back, or probably you have to get a salary cut on it. But then it becomes, once you enter that field, the life is very easy. I will say, guys, I have retired at the age of 30, exact 30. I will not say retirement. I have a lot of I'm a millionaire or a billionaire. I have enough money to survive. And all the money I have earned is majorly because of investing into stock market. And that money and that knowledge I have got from working as an equity research analyst only. So it was my aim, to be an investor. Yeah, the job was one of the perspective where because see, I did a job is just because to understand or work with people who are experienced than me, who know better how to invest. Because since I was a fresher, I don't know how to invest. I was just knowing financial modeling and report writing. But at the end, mindset is what I had worked for. I never worked for money in equity research, though the salaries are huge in equity research. At the start is very limited. Probably you have to start with an internship. But once you grow the salary, I will say my salary became from 2 lakhs to 20 lakhs in no time. I started a very small base, but 2 to 20 didn't take much time, and 20 to 40, okay, took a bit time, maybe 2, 3 years to double the salary. And then boom, it was like 40 lakhs when it was at the end, 40, 50 lakhs something. So with bonuses and all, it includes 40, 50 lakhs. I knew that I can make money from stock market. I don't require a job. Usually my plan was to retire around 35, 40. And I will say COVID was a blessing in disguise, which helped me increase my portfolio. And I was a pharma analyst. So every time I have done a research only on pharma, and if you guys follow markets, pharmaceutical sector, you must be knowing what happened in the pharmaceutical sector at the time of COVID. I made money in the mutual fund as well. Forget about the stocks. Mutual fund has given me a 30% return, pharma specific mutual fund. It all happened because I was in the market every day, and every day, every minute, I used to only think about markets. If you are that passionate enough to get into equity research, then yes, I can help you. But if not, then this field is not for you. If you think money is the priority, I want a 15 lakh, 20 lakh CTC at the start, then you might not get. Though I have placed students who have got 17 lakh CTC, but I will not say that everyone gets that. That guy was a little bit crazy enough. He used to get up at 4 a.m., do all the research, what I have told him.
he was from a normal MBA college, not even MBA finance, but still he cracked a research role that was a much higher pay than a CA CFA. Okay. So today, I am going to tell you one of the most important thing that even as an interviewer, if I have a recruiter, I would like a guy to understand or a candidate to understand what is the mindset of investment. You must have learned something, or you must have come across an interview process where they ask you write investment thesis, write 100 or 200 words pager and send us before applying, or with your CV. We have come across. Usually recruiters do ask, send me a one pager or maybe a 2 page or a 200 words report with your investment thesis on why do you like a specific stock. There's a chat box is open. You can write in the chat box. I would like to have a conversation. If you have specific doubt, you can raise your hands. I will also unmute you. No harm in that. Okay, so let me take a poll. It says who all are interested into getting into equity research? Who all are interested into getting into equity research? Can I do a poll? Let me have a poll. Okay. Looking out for the reason I'm asking is for 1 second. I'll just create a poll. The reason I'm asking is because we also get a lot of openings where recently I have an opening which is at HDFC Securities. One of my friend is hiring. The problem is I am not getting the right candidate. Okay. Now, an internship. First they take as intern, and then they hire us full time. Okay, so we have placed like 4 to 5, but somehow my batch has just started, and I don't have the right candidate for that. Though 2-3 people have given it, they were CA CFA, but still they were not able to get into that research role. Why? I'll tell you why. First, let me ask who all are interested into equity research so that I also have a chance of speaking on it. Looking out for equity research roles. 29, 30, okay. Okay, great, okay. 32 of them. So guys, I will say I have roles, this comes a lot of times in my with me, where see my friends usually they hire, and what happens, referral becomes a very important part, because nowadays if you say that if you put on LinkedIn that you are hiring for equity research as a fresher, minimum you get 500 CVs minimum. Even as an internship, I have got 400 CVs for just an internship. Now that is the competition. I was just having two interns and I have got 400 applications. Now guys, you tell me, how should I select you? Any one of you, if anyone likes to unmute themselves, this question, how should I select out of 400 only 2? On what basis should I even shortlist the CVs? Anyone? Who was crazy on markets? Okay, Arjun. On the basis of project done, experience in the market. Yes. But majorly, equity research. If you have experience, then you will not have problem getting into equity research roles. Vimrash, problem is that if you have experience, equity research roles are easy. The problem is once you don't have experience. Arjun says who is crazy on markets. Kushal says on the basis of project done. Correct, Kushal. I agree. Project's done. But Kushal. Okay. Arbinan is saying skills with certificates. Was an intent of go for investment and research on the basis of equity research reports. Prabal. Okay. Okay. Equity research roles. Basis of equity research reports. So I'll say Prabal. Skills and certificates are when everyone has skills and certificates nowadays. You see a lot of courses in the market. No, a lot of them have skills and certificates. You will, if you enroll for any course, probably you will get the skills, you will get the certificate. Research reports, Prabal, now everyone is able to make research reports. There is no one
AI can make it quickly. Okay, AI can make that quickly. Who has the intent of go for investment research? Mayank, you are right, but how will you prove your intent? Question comes. Who can connect? Correct. They agree totally. Who can connect with numbers with investment thesis? Projecting future financials of a company through analytical with combined. Fine, Ganraj. That's also fine. The things that you're telling, how do you prove it? Okay. Things that you're telling, how do you prove that you are crazy enough? You know forecasting. You have, you have made reports. Fine. That's is all fine. Content creation on stocks, go crazy, deep diving into companies. Yeah, Arjun, fine. Content creation, but under whom? If you start creating content on your own, you might think you are right. But if no one is judging you, you will always feel you are right. Okay. Business understanding, fine. But the question comes, who is in the charge of saying that whatever things you are doing is right? I'm a cricket fan. Let me put it into cricketing phase. I play good cricket in my area. Okay. Out of the 100, I'm in the top 10. Guys, do you think I can compete with Virat Kohli? If that is the case. Or do you think I can compete with Jasprit Bumrah? No, there is something that is missing because I don't take any any coaching and everything. But still, I am, able to hit good sixes. I am, I can play, I can ball Yorkers, etc., etc. Does it mean I'm a good cricket? I have the intent. I have, what do you say? I know how to play, how to hit sixes. But the question comes, where have you competed? Is there a competition? Have you worked under someone? Is there a mentor who can say that, okay, this guy is doing right? So now this is what I started. This is what I found a problem in the industry. I have placed a BCom guy who has just completed BCom with a CTC of 5.5 lakhs. A BCom guy. Yesterday he called me and he said that, sir, I have an interview in Parag Parek Mutual Funds. Now, Parag Parek, even getting your CV shortlisted is a big thing. Even a CS CFA is not able to get into that role. But why was he able to get it? It's because whatever research he is doing is been backed by some kind of experience. So that is what matters a lot into equity research or IB field. Or else your degree matters. If you're a CA gold medalist, CFA, modeling, valuation, then you are preferred. Out of that 400 I was saying, I will prefer someone who is from IM. If my salary there's no limit for salary. If there's a limit for salary, probably I will go for a CFA level 3. Why? Or a CA depending on what the role is. Or a CA CFA. That's it. Normal MBA colleges, tier 2 colleges are not even considered for that role. You don't believe, guys, JBMS. I have taken 2 interns from Jamnalal Bajaj Institute. Those also, those guys said, "Man, sir, last year there was a company who came for equity research roles. They hired no one. They hired no one from the campus. Even in the top institute of Mumbai, of rather India, Maharashtra, Jamnalal Bajaj is one of the top institutes from in India. After IIMs A, B, and C, the fourth name comes of JBMS, fourth, fifth. Why is that problem? Experience. So we are doing a challenge for the next 10 days starting from Monday. You have a time of 1 week to prepare a report, prepare an initiating report, get a financial model done. And then you can, do an internship with us. If you are good enough, so internship will be depending, we are only hiring 2 people. There will be a 15,000 stipend since it's Pune. So that is why I'm giving a 15,000 stipend so that, you can at least come and stay there, work with me. If you are good enough, I might refer you, or else you have a two months of, exposure for the equity research internship. So I'll tell you what my interns are doing on a daily basis. So we are making reports. I'll show you one of few reports. Since I was an analyst, see, this is my report. See my name over here. These reports are published on Bloomberg. This is one initiating reports. This is one quarterly reports. There is a financial model which is being made. Once I'll open my financial model. Making a model on SAMI Industries.
open the model. This is what my interns are doing on a daily basis. Tell you how does the internship work? You have to find stocks, write investment thesis, read conference calls, make financial models, update industry update. They're just making this model. So see, the model is so huge. There's not only P&L, balance sheet, and cash flows. It's formatted, summary of the annual, quarterly, then there are PPT numbers, then there is a DCF, schedules have been made, hotel businesses has been performed, hotel split, where is the exact revenue coming from, and then we are forecasting on it. Yeah, sir, you are right. Cloud can do stuffs in minutes. Writing reports, financial modeling can be done in seconds, not even in minutes. Now the questions come, say, Roham, is that will you give your 100 crores to cloud and tell him to manage? Yes or no? Whatever you do, I am okay. So there is someone who should be responsible for it. 100 crores to be invested. That is where the human touch comes. Yeah, at the end, we take the decision, not cloud. Definitely. So that is why I say equity research jobs have no end to it. Only if you look those jobs as your own portfolio. If you look that jobs as typically a job कि मुझे जाके वहां पे ना रिसर्च करके पैसे कमाने हैं कि बस मैं जॉब पे जाऊं, मैं मॉडल लिखूं, रिपोर्ट बनाऊं, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं. वो जॉब्स तुम्हारे अगर एजुकेटेड हो तो ठीक है, मिल जाएंगे तुमको, बहुत हाई एजुकेटेड हो तो. वरना तो क्या है, तुमको कल तुम्हारे जॉब्स तो रिस्क में ही है. अच्छा, Vimraj has said, but someone who has seen markets for years has idea about stock cycles, intervals of charts, reading with alignments on a example, looking at institutions, so accumulation for reports. Correct. So that is why you have to work with an experienced guy, and that experience actually count. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्लासेस गलत है. सी जो भी क्लासेस में सीखा अच्छे रहे, बट द रोल्स आर लिमिटेड, एंड दैट इज व्हाई आई फील टीचिंग, आई सेड यूट्यूब पे सब कुछ फ्री अवेलेबल है. एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री. हाँ, तुमको लगता है कि थोड़ा तुमको पर्सनल टच है, यू कैन टेक कोर्सेज एंड ऑल. अभी तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई फास्ट पेस द थिंग्स. मेरे लिए ना, मेरे यहाँ पे तुम मॉडलिंग और रिपोर्ट राइटिंग मत सीखो, मुझे तुम काम करके दो. यू जस्ट हेल्प मी मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इफ यू कैन डू दैट, आई विल हेल्प यू एवरी डे. हम एवरी डे मॉर्निंग कॉल्स में होंगे. तुम मुझे आके न्यूज़पेपर बताओ. यू हेल्प मी, you help me do research reports, help me make reports, help me make financial model. I will ask you 100 questions. Why this stock? Why not that? Why this industry? What is the industry saying? Have you done a ground research? Have you actually gone and see the product, etc., etc.? Okay, so this is what I want you to do. So in the training also, मैं यही ट्रेनिंग कर रहा हूँ. See, weekends को there will be sessions. Weekday को तुम मुझे आके बस इन्वेस्टमेंट थीसिस बताओ कि मुझे ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स. अगर तुम ये कर सकते हो तो यस, डेफिनेटली आई विल टेक यू एज एन इंटर्न. हाँ, तो ये 10 दिन का चैलेंज है. ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक एवरीवन. सी, देयर इज आल्सो लिमिट फॉर माय स्पेस. आई कैन नॉट टेक एवरीवन इन द ऑफिस. हाँ, तो दैट इज व्हाई आई हैव डन अ कोर्स. सी, आई कैन नॉट स्पेंड पर्सनल थिंग्स, बिकॉज इफ आई वांट टू take anyone for the internship, there is huge competition. So I have said there is a challenge. It's an online challenge. 10 days is online. You can come for our morning calls. You are allowed to come 10:30 to 11:30 every Monday to Friday. Then there is an interview preparation session from 7 to 8 where you can improve your English communication. If you want to present anything, you can present something like that. This week, though, we are doing CV building activity entirely for that week. Make your CV, make sure that your experience align with the roles that you're applying. ये तो हो गया दिन में. फिर I will give you financial modeling reports. एक conference reading का भी एक वीडियो है that I will share you कि conference call read कैसे करते हैं, लिखते कैसे है. आज का भी वीडियो I will share you where how to write an investment thesis. मैं तुमको बोलूँ कि investment thesis लिखना है तो कैसे करना है, and then you present it. So after 10 days, I will take your personal mock interviews. Those who have registered for it, I will take a personal mock interviews, and I can obviously tell you what are the ifs and buts. If you are well enough, I will like to take you as an intern, because मुझे भी students चाहिए होते हैं place करने का, और मेरा भी काम होता ही है. Because I found that problem that when I refer someone,
टिल आई डोंट नो यू पर्सनली ना, रेफरिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसे मेरा नाम खराब होता है। रिसेंटली ऐसा हुआ, मेरा एक्स कंपनी क्रिजिल में, आई रेफर्ड टू माई सीनियर, वो बोलता है ऋषभ योर स्टूडेंट्स आर नॉट गुड, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, सी ए फिर सब लोग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। फिर माई स्टूडेंट्स आर नॉट गुड मतलब ये जो स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन हुए हैं, हार्डली एक महीना भी नहीं हुआ था, और बाकी जिनके पहले सब प्लेस हो गए, एचडीएफ सिक्योरिटीज में जितने भी गए थे सब प्लेस हो गए, सबको जॉब भी मिल गया था। आई थिंक 6-7 लोग प्लेस हुए थे एचडीएफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी रिसर्च में, वो इंस्टीट्यूशनल सेल साइड पे, ऑल हैव गॉट द जॉब। पर अभी जब मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी जॉब्स काफी आ रहे हैं, यू सी द अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ, पीएमएस ओपनिंग्स, जॉब्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं, काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो मेरे पास स्टूडेंट्स ही नहीं है प्लेस करने को, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। बट हाँ, आई वांट कंसिस्टेंसी, वो मैं देखता हूँ, कैन यू वर्क 10-15 आवर्स अ डे, इफ यस प्रूव इन द चैलेंज, मैं तुमको सब हेल्प करूंगा इन द चैलेंज। तुम रोज आओ मेरे से, रोज बात करो, 11:30, 10:30 से 11:30, आई एम अवेलेबल मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे यू हैव टू वर्क। तुम अगर ऑफिस भी जा रहे हो तो यू कैन डू योर वर्क इन द इवनिंग। बट कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। ओके, okay, fine. So let me start. I will answer all your questions later on, Prabal and all. Prabal, I will answer your question later on. So just be till the last so that if you have any doubts, you can ask me about the internship. Acha, those who have registered, acha, we have kept 1,000 rupees fees. It's just that because see, I will be spending my time on you. I will be sending my videos. We will be taking you for the interview preparation. उसके लिए मैं कर रहा हूँ, nothing else. Because if I give it free, क्या होता है? See, I got 400 applications. मैं सबसे पैसा नहीं ले रहा हूँ. Those who are serious enough, वरना क्या होता है ना, they come and unnecessarily create a chaos that मैं ये डालता हूँ, I am putting my efforts, but I don't get anything in return. So for that efforts, we are charging 1,000 rupees, and obviously तुम्हारा सब obviously will give you report, हमारे modeling के video से that is costing 5,000, we're giving it free. We are getting you for the CV बनाने के लिए, अभी नहीं चलो internship नहीं हुआ, फिर भी तुम modeling तो सीख सकते हो. You can at least interact with me, देखो कैसे करते हैं बाकी के हमारे जो इंटर्न्स है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिपोर्ट बना रहे हैं. सो मंडे को वी आर प्रेजेंटिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कम एंड आस्क देयर क्वेश्चन एज वेल. तो आ सकते हो तुम. हाँ, वर्किंग प्रोफेशंस कैन नॉट डू एन इंटर्नशिप यार सोनालिका, यू कैन नॉट डू एन इंटर्नशिप, it will become difficult. So what we do, we provide and for working professionals, we provide a freelancing certificate. You have worked with us. Obviously, if you make reports and all, then only we'll do it. Then no, we have, because see, I also have a fund. So if you can help me understand the fund, understand right investment thesis, I'm okay. I'm okay to do that. So you cannot tell us the internship, but you can also show us the finance project that we have worked on. 2 months will be the project, and 2 months will be very hectic. That is why equity research roles are very hectic. 10-12 hours, so we have to make. Today there is an automobile report, automobile numbers which have come out, that also you need to update. So ऐसा होता है हर दिन, every month, every day you have to update something or the other. Now let's go on preparing a one-pager note. भी one-pager note लिखने के लिए, अच्छा, recommended to do it on Word. Don't do it on any, I will say, PPT or something. Is always Word is preferred. अच्छा, जब वर्ड पे लिखते हो तो ना, आई प्रिफर राइटिंग इन टेक्स्ट बॉक्सेस. ये टेक्स्ट बॉक्सेस कैन हेल्प यू फ्रेम योर थीसिस वेरी वेल. तुम कैसे भी हिला सकते हो वहां पे, वी कैन राइट आई कैन मूव हियर एंड देयर. सो टेक्स्ट बॉक्सेस आर रिकमेंडेड. इट इज सेम लाइक पीपीटी. आई विल क्रिएट वन. Okay, usually one pager can be two pager as well. 1 to 2 page, usually 200 words. Okay. Okay, fine. I will take this up. So insert the text box. Okay. Guys, I will answer all your questions. Later on, I will have a 30 minutes, 35 minutes I will teach you. उसके बाद I will give a brief again and तुम मुझे तुम्हारे क्या डाउट्स है वो मुझे पूछ लेना. So what happens, others who are there, who are for the internship, जिन्होंने register किया है guys,
You have to do all those things, whatever I'm telling, and I will take an interview on what you have written. Okay, interview will be it will be all on investment thesis. कि तुमने investment thesis कैसे आया? How do you arrive at such thing? अच्छा, interview questions, write investment thesis and send us through an email which talks you like and why. 100 to 200 words or probably a one page. So जब भी एक रिपोर्ट बनाते हो तो यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव टू कीप एन ओपन स्पेस. यहाँ पे थोड़े बहुत चीजें तुमको स्टॉक्स के बारे में डालने होते हैं. तो शो यू माय इन्वेस्टमेंट थीसिस. मेरा जो होता है, व्हेन आई वाज एन एनालिस्ट, ये देखो, दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट थीसिस आर रिटन. एंड यहाँ पे एक स्टॉक डिटेल्स का पेज होता है. ठीक है. हाँ. वन वन थिंग दैट यू शुड नोटिस, whenever you write investment thesis, सिर्फ सिर्फ राइटिंग नहीं होता है. इट इज ऑलवेज डेटा पॉइंट्स. सिर्फ राइटिंग करोगे तो एआई भी वैसा कर सकता है. एआई कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग एज राइटिंग. If you go and ask what is write an investment is on a company, yes. अच्छा, now I would like to ask, चलो तुम्हारा ये क्वेश्चन, तुमको एक क्वेश्चन आया आज. All our equity for 30 people have answered me that they want to get into equity research. Can anyone unmute and tell me if today you want to write a report investment? Let's say today, okay, there is an opening. Quickly write an investment thesis in the next 2 hours. What are you doing it? Can anyone tell? The next 2 hours, you have 2 hours. Quickly write an investment thesis and give me. Anyone would like to answer? कौन सी कंपनी पे चूज करोगे and why? Raise your hand. Like, guys, will you raise your hands? Anyone would like to answer? चलो यार. अरे guys, if you are interested, let me know ना. तो मैं कैसे select करूँ तुमको? Anuj has raised his hand. Others? Only Anuj wants to answer. Yeah, sir, I would research on Sham Metallic and Energy because right now steel prices are rising and government has imposed a 12% duty on steel imports. Okay. So that and also Chinese imports are also declining in India. So that is why Q4 results are expected to be very good for steel companies. So that is why I would choose Sham. अच्छा, which company and Anu you said? Sorry, I missed out. Sham Metallic and Energy. Sham Metal Energy. Okay, you said because steel prices are declining. Fine. Okay. Anyone else? Anyone else? No one? सोचो यार. Mayank wanted to answer. Mayank, yes, you can unmute yourself. Fimraj is saying I'll select Coal India. Okay. Our Yeah, demand is. Yeah, Mayank. well, can I answer? Yeah, so I just recently done a company called Acme Solar. So I just done because it has it is in the renewable sector, and Okay. right now the demand for renewable sector is increasing, and we know that going some of the years the non-renewable sources will not be preferred a much, and renewable sources will be preferred a lot. And Perfect. besides that, currently also as the India is lacking the petrol and other things are facing some difficulty because of hormone states and others. So demand for indigenous energy that we are producing, and specifically from the renewable space, that will give a major boost. So there is a much space to invest, much opportunity to invest in that. So I will go for energy sector primarily to go for investment. Okay. Fine. Fair enough. Fair enough. Okay. Fine. Okay. Now, guys, I will tell you one thing. A CA got rejected in HDFC Securities. CFA. The reason was my friend told me that Rishabh, he is good. The problem is mindset का problem है. Problem with the mindset. Now, when I asked you this question, which stocks to invest, you all were right. Those who answer all were right. But the question comes, do you understand the sector? Means what? Do you understand means what? When you said renewable, one said coal, one said metals. As an equity, when you say about equity investment, equity means owner of the company. Agree? Okay. अभी those who guys want to answer the question, do you know ये जो energy है, renewable energy, कौन buy करता है, कितने में बनता है, who is the one who is buying, what is the price, what is the competition,
मेटल्स में हु आर द कॉम्पिटिटर्स, वो दोनों मेटल्स के प्रोडक्ट्स में क्या फर्क आता है, कितने प्राइस में मिलती है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स टू मेक इट, डू यू अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन, हैव यू सीन इट, तुमको पता भी है, डू यू गेट द डेटा पॉइंट्स ऑफ द कंपनीज की कितना मेटल बनाता है, कितना बेचता है, डू यू हैव दिस काइंड ऑफ डेटा? जहां तक मुझे पता है ये डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई टेल यू, क्वेश्चन आता है चैनल चेक्स का। मेटलिक्स कंपनीज में तुम क्या चैनल चेक्स करोगे? तुम कौन से इंडस्ट्री वाले को जानते भी हो? हाँ, अब जानते हो, गुड इनफ। पहले तो जानते हो कि नहीं, कोई इंडस्ट्री में जो है, जो मेटल्स में डीलिंग करता है, जो तुम मेटल्स की बात कर रहे थे, कंपनी का कोई आदमी, इफ यू नो दैट गाय, इफ नॉट तो तुमको ये पता ही नहीं चलने वाला कि उसके क्लाइंट्स कौन है। मयंक, तो कैन यू नो हु आर द क्लाइंट्स? फिर तुम देते हो, मेटलिक्स की बात की, उसके क्लाइंट्स कौन है, एंड वो कितना बेचता है उनको, उसके Yeah, कॉम्पिटिटर्स कौन है, इन कॉम्पिटिटर्स में फर्क कितना है प्रोडक्ट्स में दोनों के, yeah, यू नो? Rohit. So actually, I'm working right now. So I basically work from the power generation companies. So ओके, वहाँ पर that where I know actually, as you were asking for, at what price they used to produce and they used to sell. So majorly, if I say for the power generation company, they used to sell their power that विच they. कंपनी, विच कंपनी स्पेसिफाई, विच कंपनी यू आर टॉकिंग अबाउट? I am talking about power generation companies. So there are two नो नो, विच mainly. वन, पावर जनरेशन, विच पावर ग्रिड यू आर टॉकिंग अबाउट? So yeah, power grid. Okay, fine. So I will So ask you, let's say, one second, I will ask you questions, you reply me, okay? yeah, sure. Okay. So who are the competitors of Power Grid? Who are mainly competitors are the Adani, Tata Power, this and Adani is in both, whether it is in renewable or in the non-renewable also. Then Adani, and you said Tata Power, Tata Power. Okay, fine, fine. Let me please. Acha, now in this, what is Power Grid selling? power selling power. Power. Yeah. What price? So it depends upon state, and generally it is varying from 5 to 6 for the non-renewable sources, 5 to 6 per unit, and if it Five is to a six. renew, yeah, Okay. rupees, Okay, 5 to 6 rupees 5 to 6 per per unit. Okay. unit, and Okay. obviously varies from state to state and depending upon the power purchase agreement that they have entered into with the discom for Okay. the state. So yeah, so I will ask, what is the difference between Power Grid powers and Adani Power का power and Tata Power का? Difference क्या है चारों के, तीनों के power में? So difference mainly the capacity and the the capacity of the plant size अच्छा, and and who is the capacity, correct? Because there is no difference in the product, correct? सबका yeah, पावर तो सेम ही होता है। यू यूज अदानी, मेरे घर पे अदानी है, मेरे फ्रेंड के घर पे पावर टाटा पावर है, किसी के घर पे पावर ग्रिड होगा, यहाँ पे एक टॉरन पावर करके भी एक कंपनी है, करेक्ट? yeah. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस। अच्छा, हु आर द बायर ऑफ दिस? कैन आई से वी So कस्टमर्स? अमन? so they actually do not sell the end users. They used to sell with the state authorities. So या, yeah. हमारा एंड यूजर्स तो हम ही है ना, एट दैट स्टेट अथॉरिटी के जाके आते तो हमारे पास ही ना पावर। हाँ वो जो जैसे मैं बताऊँ यमुना अथॉरिटी जैसे दिल्ली में मैं अभी हूँ तो दिल्ली में एक होती है BSES जो कंपनी है दैट आर डिस्कॉम दैट आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ये जो पावर ग्रिड है दे आर जनरेटिंग कंपनी सो जनरेटिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ट्रांसफर करती है अच्छा एंड करती है, यस देन करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो हम वी आर द एंड यूजर ऑफ पावर्स तो वो फिर उसको हमें सेल करती है जिसके लिए वो आइदर बाय प्रीपेड मीटर और बाय पोस्टपेड बिल वी यूज टू पे नहीं द नहीं, पावर। वन सेकेंड, नो आई एम टॉकिंग, मैं पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ पावर ग्रिड्स, सो हु इज द एंड यूजर ऑफ द पावर? तुमको अगर डिमांड एस्टिमेट करना है तो पावर का डिमांड कैसे एस्टिमेट करोगे? so उस region में based on the historical data what are the how much are the industries and the local consumption both commercial consumption and local consumption and फाइन, how तो yes क्या, सो वही, सी एट द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पावर इज समथिंग लाइक, अभी तुम देखोगे हीट बढ़ रही है इंडिया में, तो पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली पावर कंपनीज विल बेनिफिट, फाइन, mm-hmm. बिकॉज इंडिया में एक पावर है, एक पावर का डिमांड है इतना, करेक्ट, पावर इज बिन डेवलप, हो right गया। yeah उसमें तुम्हारा एनालिसिस किधर है अभी? किधर है मतलब I do not get that so my अभी main
So right now the demand for it's coming 3, 4, or even say 5 months specifically, the power demand will increase a lot. Increase. Although yes, Correct. करेक्ट so वही है. हो गया ना, पावर डिमांड इंक्रीज हो गया, एवरीवन विल ग्रो. Question comes, where is your analysis in this? Do you so think you will analyze the financial statement and give me an answer? yes, I can analyze the financial हाँ statement. नहीं, तो वो तो एआई भी करके देगा ना. भैया तुम ये बोल रहे हो, सबको पता है ये चीज कि गर्मी बढ़ रही है इंडिया में, पावर डिमांड बढ़ेगा, तो पावर कंपनीज को फायदा होगा. दैट्स इट, So हो गया. it depends upon स्पेसिफिकली जब पावर हम सेल करते हैं तो हम्म. स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो पावर परचेज का वो जो टेंडर निकालती है. सो वो करेक्ट. टेंडर के बेसिस में दे यूज टू गेट द कोटेशंस फ्रॉम दिस पावर जनरेटिंग कंपनी जो अडानी, टाटा पावर, ये लोग हैं. And then based on the tender, whosoever used to quote the lowest one, so they generally used to get the they used to get the tender. And the second thing is that based also on the history, they also depend that who has a history of supplying the powers without having minimal interruption, or there is not a bad track record in the past. So these are the things based on which the state authority used to allow the tender to these power generation companies. So फाइन. ये हाँ. So कैसा है मैन, you will not get so much of time to present your things. Okay, you have 1 minute, you have to speak in 1 minute. अभी when you are talking on these things, I just wanted to understand what is the difference. तुम बोल रहे हो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगा, स्टेट गवर्नमेंट वैसा करेगा, वो टेंडर्स होंगे, ये होंगे, वो होंगे. फाइन. इसमें फिर टेंडर्स कभी पावर ग्रिड को मिलेगा, कभी अदानी को मिलेगा, कभी टोरेंट को मिलेगा. उनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस है, डिमांड बढ़ रहा है इंडिया में, दैट्स इट. इफ यू आर फाइंडिंग अ कंपनी जहाँ पे कोई मोट नहीं है, वही कंपनी में, देन योर रिसर्च हैज नो वैल्यू. एक एक्सपीरियंस वाले के सामने तुम ये चीज प्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स में ही डिफरेंशिएशन नहीं है, सो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या बेसिस पे उसको प्रूव करने वाले हो कि कंपनी अच्छा है? So can I say a word of a sentence? आई वॉन्ट इट डेटा पॉइंट्स. अगर डेटा है तो बात करो, स्टोरी नहीं चाहिए. ठीक है. मुझे Okay. बताओ पावर ग्रिड कितने में बिकता है, टाटा पावर कितने में बिकता है, टोरेंट कितने में बिकता है, एक यूनिट बेचने का उसको कितना फायदा होता है, क्या प्राइस पे फायदा होता है, उसके लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कितने कंपनीज कितना कैपेसिटी लेते हैं. डेटा पॉइंट है तो बात करो, स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है. Okay. No, the data हम्म. points I do not have, but I can just mention on what basis the selection used to be done. नहीं, स्टोरी है तो सिलेक्शन इज ऑन डेटा पॉइंट्स. स्टोरी पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा. एज अ Yeah. बिजनेस ओनर, एज एन So इक्विटी होल्डर्स, मुझे बताओ पावर ग्रिड को एक यूनिट बेच के क्या फायदा हो रहा है जो अदानी को नहीं हो रहा है, एंड हाउ इट इज पॉसिबल. अदानी so को हो रहा है, पावर को नहीं हो रहा. yeah, so Adani has the, I think, 15 1500 kilowatt megawatt hours of power total capacity. So जो जितनी bulk capacity है, it is getting the power purchase agreement, and specifically Adani has power purchase agreement with the discom for next, I think, 30 years. So ओके. yeah, in comparison to the other companies that you are seeing. So that is the main thing. And whenever you are going to invest in a company, then you will specifically see that where you can see a recurring income, where your investor can generate return. And then once the top line item I am able to get, because as I said, the capacity is the largest, and the secondly, it is generating. It is so it is able to procure the goods at the lowest price, and also the generation cost will be lower. So margin वहाँ पे ज़्यादा है in case of अगेन, Adani. देयर इज नो डेटा पॉइंट मयंक. मैंने क्या पूछा? So एक बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो बता. so in case of एक बेचने के बाद अगर profit, if I talk about Adani Power, so the total cost is coming around 4.25. हम्म. So it's coming around one. Now, in some cases where the power price is 5.5, so 1 to 1.5, 1.25 is becoming per unit, per unit revenue that the Adani Power ओके. is getting. Yeah. तो टाटा पावर को कितना हो रहा है? Tata Power generally the production cost is coming around 4.75. So they are, फाइव.
So because of the indigenous coal that they are importing, and mostly cases the coal is coming from Indonesia. So the bit higher of the price that we have checked, and because the coal price, and because of that the input cost is a bit higher for Tata Power, and that's why the ultimate margin per unit basis that is a bit lower for Tata Power in comparison to Adani. Okay. And what about power grid? So in so Power Grid and Tata Power, if I say the power in case of Power Grid, the generation cost comes around 4.6. So again it is in some 4.6. So it is approximately 10 basis point 10 0.210 rupees difference in terms of production. So Power Grid I can say a bit better in terms of per unit generation, but it has a very lower amount of low amount of API. I think it has only 15 years of PPA and with the discount. Okay, So what if I tell you that government changes tomorrow and Tata Power gets an order of again 1500 crore like Adani Power? तो क्या होगा? all sorry, government changes and they get a tender for 15 years. हाँ, You are saying. for Tata Power. Yes. So for that, if you are saying, then that must be backed by some basis how they will get the this another Because contract for that, क्या because होगा? क्योंकि I will tell you why. Adani will be out of capacity, ना? Adani Adani will be out of capacity, but their expansions are going on. They have already purchased land in the 4 states, which is 25 acre. I have already read about that. So expansions are Yeah. going on. So So if in I the have, Mayank, I have two options: Adani Power or Tata Power. Which power should I take? Any so state. primarily Adani Power. Why? What is the difference? So because of the currently they have the lowest power generation cost, नहीं and वो second, तो मैं क्या करूँ? मेरे को सिर्फ पूछना है टाटा पावर लो या अदानी पावर. हाँ तो इसलिए तो मैं अदानी पावर बोल रहा अच्छा, क्यों अदानी पावर मुझे सस्ते में एनर्जी देता है और टाटा पावर महंगे में देता है? Is it? हूँ. So Adani Power, ultimately we are getting power from the discount, but Adani जो power sell कर रहा है, so it is getting higher profit in comparison to Tata Power. तो हो गया ना, फिर रिसर्च इज एंटायरली फिनिश्ड अभी. So I think रिसर्च based इज on डन. yeah, 1500 करोड़ से आई विल टेल यू हाउ द नंबर्स वर्क. 1500 करोड़ into whatever the cost, you said the capacity 1500 crore and whatever the revenue is 30 years के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, खत्म. रिसर्च इज डन. so that again that is जो आप 1500 करोड़ बोल रहे हैं, that depends upon जो expansion capacity कितनी ज्यादा है. जो अभी मैंने 25 acres इसका बताया है अदानी पावर्स का. So that they have purchased the land, but how soon they will be able to build the execution and how the Tata Power will be based on the execution, that depends. So जो दो फैक्टर है. आप जो फ्यूचर एक्सपेंशन का बता रहे हैं, गेट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सो उसमें टाटा पावर का ऑलरेडी 4 प्लांट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अडानी पावर का मैंने बोला है कि एक सेकंड. मुझे ना मयंक, आई वांट अ स्पेसिफिक डिमांड, स्पेसिफिक चीजें चाहिए. पावर का डिमांड इंडिया में बढ़ ही रहा है. आई विल टेल यू, पावर का डिमांड इंडिया में बढ़ रहा है. इतना कैपेसिटी का डिमांड है. अदानी कर रहा है, टाटा कर रहा है, टोरेंट कर रहा है. एवरीवन इज डूइंग एक्सपेंशन अपने अपने जगह पे. अभी मुझे क्वेश्चन आता है, मेरे घर पे टाटा पावर आता है. कैन टाटा पावर बी चेंज टू अदानी पावर? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है इंडिया में? आइडियली नॉट. ठीक है, अननोन. ये तो पॉसिबल नहीं है. वो सिर्फ एक्सपांशन कर रहा है. हाँ. सो तो अगर मैं ब्रॉड बेसिस पे, तुम बता क्या बोल रहे हो. यू आर सेइंग कि सर डिमांड बढ़ रहा है, उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. फाइन, हो गया. इन्वेस्टमेंट थीसिस खत्म हो गया तुम्हारा. इसमें कोई एनालिसिस तुम ही से पाते. तुमने बोला क्यों चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, अदानी पावर या टाटा पावर? तुमने बोला अदानी पावर. क्यों? क्योंकि वो सस्ते में बिकता है या उसका कॉस्ट कम है. सस्ते हो में गया बिकता फिर. है, और सस्ते में बिकता है, और दूसरी चीज ये भी है, जो आप टेंडर 1500 करोड़ का बोल रहे हैं, वो कौन से एरिया में आप उसको हाँ, टेंडर देने वाले, उस एरिया में ठीक है. किस. कल कल उठ के टेंडर आएंगे, कभी अदानी को मिलेगा, कभी टाटा को मिलेगा, कभी टोरेंट को मिलेगा. करेक्ट. क्या. हर टेंडर थोड़ी टाटा, हर टेंडर थोड़ी अदानी को मिलेगा. नहीं, हर टेंडर नहीं मिलेगा, उसमें अदर फैक्ट, खाली हम कॉस्ट को नहीं देख सकते. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जो आप एक्सपेंशन की जो नए टेंडर की बात कर रहे हैं,
उसके भीतर कौन से एरिया में आप ला रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी सेटअप है या नहीं अडानी का या टाटा का। और उसके बाद में ऑलरेडी दे इफ दे ऑलरेडी हैव द पीपीए, देन दे इफ दे आर ऑलरेडी हैव एंड इफ दे आर एक्सपेंडिंग, सो जिसका ऑलरेडी सेटअप है उसको चांस मिलेगा टू गेट द टेंडर। सो दैट इज द केस। So if एंड I आई ask वांट you, if I ask you, इंडिया में टोटल कैपेसिटी कितना है, कितना प्रोडक्शन होता है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? डू यू नो द जोग्राफीज जहाँ पे पावर अभी तक अवेलेबल नहीं है? तुमने देखा है यहाँ पे? एक एक मैं बोलूँ, तुम्हारे बिल्डिंग में कितना पावर कंजम्पशन होता है, पहले कितना था, अभी कितना है? कुछ है आइडिया तुम्हारा? मेरी बिल्डिंग में टोटल एग्जाम्पल कंजम्पशन, बोल रहा हो, तुम जब घर पे कंज्यूम करते हो, कितना कितना कंज्यूम करते हो, कितना बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ने वाला है? इंडस्ट्रीज इंडिया में कितने हैं, कितने जहाँ पे ये अदानी सेटअप हो रहा है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं क्या? डू यू हैव द डेटा पॉइंट्स? या सो वरना इस तरीके तो ऐसे हो गए ना कि सर फार्मा में लोग तो बीमार पड़ ही रहे, तो फार्मा कंपनी ले लो, वो तो ग्रो होने ही वाला है। सन फार्मा का दवाई अच्छा है टॉरेंट फार्मा से। यू नो, इफ यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट्स, योर इन्वेस्टमेंट thesis हैव नो वैल्यू अभी के लिए एज अ फ्रेशर। ये तुम करो बाद में, जब तुम सच में पावर सेक्टर ट्रैक करते हो तो। ऐसा है। मतलब मैं बोलूँ एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा था, मैं तो बिना दिमाग, तुमने बोल दिया ना कि टाटा अदानी पावर ज्यादा कमाता है, बस दैट्स इट, हो गया मेरा एनालिसिस खत्म। मुझे कोई डेटा डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में धूप बढ़ रही है, पावर कंजम्पशन ज्यादा होने वाला है, डेटा सेंटेंस आ रहा है, खत्म, रिसर्च इज ओवर। बिकॉज इफ यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टाटा चाहिए या टॉरेंट चाहिए, तो फिर क्या है? फिर तो इंडस्ट्री फोरकास्ट ही करना ना। कंपनी तो चली गई, कंपनी पे तो कुछ है ही नहीं। So the thing, yeah, you are right. But the only thing हम्म, is that people are not only investing on Tata or not only investing on Adani, and why they are investing, that is not only basis on the price, but also on the how and which area they are catering the demand. So और वहाँ पे कितनी डिमांड जो वही आप, मैंने पूछा तुमको, मैंने तुमको वही पूछा ना, डिमांड कहाँ पे है, कौन से कंपनीज है, डू यू हैव दैट? वहाँ पे कितना पावर कंजम्पशन होना चाहिए, कितना होता है अभी, कितने से बढ़ने वाला है? या सो अब जैसे मैं अभी जितना डेटा मेरे पास नोएडा एरिया में है, यहाँ पे दो इंडस्ट्री ऑलरेडी, एक ऑटोमोबाइल की और एक फिल्म सिटी की इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है। सो कितने अकॉर्डिंगली डिमांड है, कितना डिमांड एस्टिमेटेड है उसका होने वाला? ठीक है, डिमांड जो है वो पर डे 1500 मेगावाट है। ठीक है। तीन सो हंड्रेड मेगावाट। या सो दैट्स वाई जो अडानी का सेटअप हो, अडानी का इसमें एक्सपेंशन ग्रेटर नोएडा में है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली दे आर गोइंग फॉर 2000 मेगावाट। सो दैट इज बट टाटा इज राइट नाउ, आई हैवंट फाउंड एनी स्टोरी फॉर टाटा ओवर हियर। सो दैट्स द केस। So the possibility of that here they have chance. Adani has the more possibility. सैनिक, वन सेकंड ऑन दिस पार्टी का एक है ना, तुमने ये बोला आई आस्क्ड यू इन्वेस्टमेंट, अदानी पावर की बात कर रहा तुम। अदानी पावर मेक्स अ सेल्स ऑफ फॉर द ईयर 54,000 करोड़, ठीक है? Mhm. 54,000 करोड़ का वो सेल्स करता है। तुमने मुझे बोला 1500, अभी कितना कैपेसिटी है उसका, कितने कैपेसिटी पे करता है ये? Total capacity, I think, 2500 megawatt. 2500 मेगावाट पे इज डूइंग But 54,000 करोड़ रेवेन्यू? इतना कैसे? so, 21 रुपीज, 21 करोड़, एक इसका? sir, so this they are saying 2500, yeah, gigawatt I'm saying. फॉर 1 गीगावाट दे आर चार्जिंग 21 करोड़? No, not ये 21 crores. So this is what I'm saying. They are selling on per day basis. तो ना कितना होता है साल का पूछना भी? 1500 का तुमने पर डे का थोड़ी बोला होगा, इतना गीगावाट 15 पर डे का थोड़ी होता है। कोई मैं पूछा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम इन योर बिल्डिंग, तो मैंने पूछा तुम्हारे बिल्डिंग में कितना कंज्यूम होता है पूरे दिन का? यू नो, Total, no, for अभी नहीं तो पता, no. नहीं पता है कितना, कितना तुम कितना पे करते हो डिस्काउंट? तुम्हारा बिल, जैसे मैं बोलता हूँ 1,000 रुपया तुम्हारा बिल आता है, ठीक है, घर पे, Yeah. कैसे डिस्काउंट होंगे बीच में? अदानी को कितना मिलता है जो अदानी का है तुम्हारे पास ब्रेकअप? So if I am paying discount around
Discom used to be 7 per unit. So and there that have layers depending upon consumption of the total units. तुम्हारे So घर का कितना यूनिट होता है? घर का कितना यूनिट होता है तुम्हारा? 300 unit per month I'm saying. What is the unit price? So you can say up to 200 it is 6 and beyond 200 it is 7. ठीक है, 7 पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, 300 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है, 300 यूनिट्स पर मंथ हम 20 कैलकुलेट करते हैं इंटू 12। चलो, 3700 यूनिट तुम करते हो। तुम ये क्या है, 1500, सॉरी, 300 यूनिट्स, ये क्या है? व्हाट इज दिस? This मेगावाट्स is और this is a unit you can say kilowatt hours. किलोवाट आवर्स। Yeah. तुम तो 2500 करोड़ हुआ, 2500 में से अदानी पावर को कितना जाता है? So if you generally the model that I prepared in that 70% used to go to that generation companies, and because there are 70% is to several go to generation companies, जनरेशन कंपनीज। correct, and other charges are there. नहीं, बार बचा कितना? 30%, 7650। No, I'm saying 70% goes to generation company. Adani Power 70% देगा जो डिस्कॉम है. अच्छा, हाँ. ओके। सो ये हो गया तुम्हारा इतना जनरेशन, उसका एक कैपेसिटी हो गया, लेट्स से कुछ सम कैपेसिटी होगा यार, ठीक है। ये तुम बोलो कैपेसिटी, लेट्स से अदानी का जितना भी कैपेसिटी होगा इनटू ओवरऑल जो कितना बेचता होगा उनके पास कैपेसिटी, सॉरी, जैसे एग्जांपल 1500 करोड़ का कैपेसिटी है, गीगावाट्स इनटू द प्राइस, करेक्ट। Yeah. एग्जांपल So, 7 ले लेता हूँ, एग्जांपल। हो गया रेवेन्यू फोरकास्टिंग, अभी क्या बचा इसमें? अभी रिसर्च क्या बचा इसमें, मुझे बता। so एक्सपांशन, yes, expansion. राइट, एक्सपांशन। बस तुम बोल रहे हो सर 4 चीजें एक्सपांशन हो रहा है, डू यू थिंक तुमको अकेले को पता है कि नोएडा में एक्सपांशन हो रहा है? No. तो फिर व्हाट इज योर एक्सपर्टीज इन दिस? मॉडल में डालोगे सीधा सीधा, तुमने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, यूनिट प्राइस है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, हो गया कैपेसिटी एक्सपेंड हो रहा है क्योंकि नए कंपनीज आ रहे, तुमने जैसे बोला नोएडा में हो रहा है, विच इज द पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। मैं कैपेसिटी बढ़ा दूं इनटू प्राइस, हो गया रिसर्च, रिसर्च इज डन। फिर तुम बोलोगे वैल्यूएशन, ईवी बाय बिटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे और एक्सपेंशन होगा सर, और आएगा। तो यहाँ पे पता है तुम क्या कर रहे हो? व्हेन यू टेक, गाइस अदर्स आल्सो, व्हेन यू टेक कंपनीज व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स, दैट टाइम योर मोट इज ओवर। मेटल्स हो गया, बी टू बी बिजनेसेस, बी टू बी बिजनेसेस में, या अगर गवर्नमेंट और तुम्हारा बिजनेस है, तो यहाँ पे अगर तुमको समझता नहीं है कि ग्रोथ कहाँ से आने वाली है, व्हाई आर यू प्रिफर ओवर अदर? वरना ये तो पब्लिकली अवेलेबल डेटा ना, मैम तुमने आज जो भी बोला इट इज ऑल पब्लिकली अवेलेबल। और मैं अगर मॉडल बनाने जाऊँ तो हो गया, तुमने जो बोला उससे मॉडल मेरा 2 मिनट में बन गया। इतना रेवेन्यू है, मैं परसेंटेज ले लूंगा, प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, एबिटा, दैट्स इट। तो द क्वेश्चन जब आता ना, ये 1 पेजर रिपोर्ट, ये सब पे रिपोर्ट्स नहीं बनाने होते। तुम बाद में करो रिसर्च, तुमने, मैं किया अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा रिसर्च किया तुमने, ये जो भी किया तुमने, इनफैक्ट मॉडल बिल्डर होगा तो बहुत अप्रिशिएटेड। बट द पॉइंट यू गो एंड प्रेजेंट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ अ फंड मैनेजर हु हैज 1000 करोड़ विद हिम, उसका ये आएगा 4 चीज, मेरे ये तो ऐसा हो गया तुम्हारा। तुमने क्या रिसर्च किया फिर? जो तुमने बोला वो तो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू डूइंग रिसर्च? व्हाई वुड आई पे यू 15 lakhs फॉर दिस रिसर्च? क्वेश्चन ये आएगा, समझ रहे हो? So, yeah. So when we are doing equity research, primarily what I've seen, I have done that, but I'm just saying that when we do, then which you are, if you're talking about specifically company के perspective में क्यों invest करे, then at the time of visiting the plants and getting out the specific ideas that what Adani Power having specific things that is extraordinary from Tata Power. So जो expansion का आप बोल रहे हैं, and so getting an order or thinking an idea and the execution level that we specifically get when we हाँ do the ठीक है ना, plans. वो तो फिर
एग्जीक्यूशन लेवल तो फिर वो कंपनी का डिपेंड होगा, करती है नहीं कर रही है, हर क्वार्टरली में ट्रैक करूंगा एग्जीक्यूशन कर रही है नहीं कर रही है। Or करेक्ट, yeah. वही ना। So तो आई विल ट्रैक एवरीथिंग, टाटा करूंगा, अदानी करूंगा, उनका कैपेसिटी तो है, तुमने बोला 30, उनको है 1500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 साल तक, कर पा रहे कि नहीं, करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो ठीक है, आई विल सेल ऑफ द स्टॉक। yeah. तो वही है, मतलब इफ आई टेक यू ना, तुमने मुझे दे दिया एक इन्वेस्टमेंट आइडिया, ठीक है, अदानी पावर हो गया, रिसर्च यही था सिर्फ। एंड ये रिसर्च कोई भी कर सकता है, बिकॉज दिस इज पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ऐसी कौन सी चीजें तुमको नहीं पता है, जो मुझे, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है बट तुमको पता है, या तुमने जाके खुद ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च किया। हाँ, सो और एक्स्ट्रा वी कैन ऐड, आई विल लेट यू नो कि ये क्या करना है, ये जो कंपनी का मैं किया, इट्स नो प्रॉब्लम, मैं आई विल से अप्रिशिएटेड जो भी किया है। बट जब तुम एक सामने वाले बैठते हैं ना, एक्सचेंज वाले के पास, वो सीधा एक्सेल खोल के बैठेगा, इतना कैपेसिटी है, इतना रेवेन्यू है, बस इतना रेवेन्यू आएगा, तुम बोलेगा एग्जीक्यूशन कर पा रहा है कि नहीं, वो तुम भी नहीं बोल पाओगे एग्जीक्यूशन कर पा रहा है कि नहीं। मैं जाके मैं आई विल टॉक विद द इंडस्ट्री गाइस, देखूंगा अदानी के आईआर से बात करूंगा, कर पा रहा है कि नहीं, रोज ध्यान रखूंगा उस पर, बस हो गया। Okay. हो गया, रिसर्च इज एंड खत्म, कैपेसिटी एक्सपांशन, प्राइस है, डिमांड बढ़ रहा है, डन, पावर सेक्टर इज डन। मेटल का सेक्टर, किसी ने बोला कि प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो रहा है इनटू कैपेसिटी एक्सपांशन, खत्म, रिसर्च इज एंडेड ओवर हियर, देयर इज नो मोड इन दैट। आज इसका कैपेसिटी है, कल टाटा पावर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगा, कल टोरेंट पावर भी करेगा, कल पावर ग्रिड भी करेगा। तो अभी उसमें से कोई जीतता है, कोई ना एक जीतेगा ही, या फिर पूरा ऐसा हो जाए कि ठंडी आ जाए इंडिया में, पावर का डिमांड गिर जाए, देन ऐसा है। तो कोविड कोविड में जब हुआ था, पावर सेक्टर्स पूरा बंद हो गया, पूरा इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे, तो इट वाज नो ब्रेनर टू बाय अ पावर स्टॉक, नो ब्रेनर, कि बस पावर तो बनने ही वाला है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएंगी, हो जाएंगे, और जो जो छोटे प्लेयर्स थे वो बाहर गए थे इंडस्ट्री के, तो क्या बचा, तो इट्स नो ब्रेनर टू बाय टाटा कंपनीज लाइक दिस। व्हेन यू मेक अ रिसर्च, जब तुम करते हो तो ना सोचना है कि कंपनी तुम्हारी है, व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन ऐड, आई विल टेल यू। अभी मैं जब कर रहा हूँ, सी ना है हाउ आई विल टॉक, आई नेवर ट्रैक पर्सनली ऑल्सो, मेरे पूरे करियर में आई नेवर ट्रैक अ बी टू बी कंपनी, अगर मेरे पास उसके आईआर और कंपनी कनेक्ट नहीं है तो। अगर मैं वो सीईओ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर उसके इन्वेस्टर रिलेशन से बात नहीं कर रहा हूँ, डेली तुम बोलो ना कैपेसिटी केयर कर रहा है कि नहीं, अगर मेरा उस पर हर दिन का ट्रैक नहीं है, या हर महीने का ट्रैक नहीं है, तो आई वॉज नॉट ट्रैकिंग दैट कंपनी। सिर्फ देखने का क्या हो रहा है, नंबर्स देखने का, क्वार्टरली अपडेट करने का, दैट्स इट। मैं जब इन्वेस्टमेंट रेस करता, अभी जो मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल टेल यू पर्सनली वेयर आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी अभी के लिए, ठीक है। If you look at economy specifically, I only invest in companies where I understand the product, where I personally use the product, or I see people using the product. मतलब B2C companies, business to consumers. Okay, okay. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म सेक्टर, हम तुम्हारे मेरे मॉर्निंग कॉल देखोगे तो हम टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं। क्यों? लेट्स से मुझे आज होटल खोलना है, ठीक है। अभी क्यों मुझे होटल क्यों खोलना है आज? क्योंकि इंडिया में ना, अगर तुम डेटा वाइज देखोगे तो इंडिया में मिलियनियर्स बढ़ गए हैं। इट इज एस्टिमेटेड टू बी 2035 तक, और 10,000 मिलियनर्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। 20,000 मिलियनर, मतलब अभी 20,000 है, 35,000 होने हैं, 15,000 मिलियनर्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। मिलियनर्स मतलब वो लोग ने दिया है इन द रेंज ऑफ 30 करोड़, 30 करोड़ के ऊपर जिनका नेटवर्क बढ़ने वाला है, वो अल्ट्रा एचएनआईज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ तुम बताओ, कंज्यूमर सेगमेंट में इफ सच काइंड ऑफ स्पेंडिंग पावर इंक्रीजेस, इंडिया में स्पेंडिंग कहाँ पे इंक्रीज होती है? बेसिक बात करें, स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होती है, वेयर डू यू स्पेंड योर मनी? लग्जरी For और मास सेगमेंट, इसमें जो मिलियनर्स होते हैं, वे विल दे स्पेंड देयर मनी, लग्जरी और मास सेगमेंट। मतलब एक मिलियनर विल ही बाय मर्सिडीज और विल ही बाय मारुति, लग्जरी सेगमेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, तुमने देखा, तुमने एक रिसर्च किया होगा, तो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी बढ़ गया। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई पेस, बिकॉज ऑब्वियसली ये मिलियनर्स का स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है। फ्रॉम 2021 जब से अनलॉकिंग हुआ टू 25, पता है कार का सेल्स
इज एट लाइफ टाइम हाई, अगर तुम ट्रैक करते होगे तो। स्कूटर सेल्स, टू व्हीलर सेल्स आर हाई, टू व्हीलर सेल्स आर एट लाइफ टाइम हाई। तुमने एसीज का डिमांड बढ़ रहा है अभी बिकॉज ऑफ द हीट। चलो मैं बोल रहा हूँ 2020, तुम ना तुम्हारे आसपास एक जनरलाइज रिसर्च कर लो। लास्ट 3-4 साल में पता है तुमने गाड़ी ली होगी, नई बाइक ली होगी, तुमने मोबाइल्स लिए होंगे, 2-3 साल में किया ऐसा, देखा होगा तुमने आसपास, करेक्ट? तुमने जो भी, हाउसिंग का सेल्स बढ़ गया है, अभी हाउसिंग का सेल्स डिक्लाइन हो गया है। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हाउसिंग सेल्स हैव डिक्लाइन। यू स्टिल हैव मनी टू स्पेंड। वेयर वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड योर मनी? वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड योर मनी? तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास घर है, अभी भी तुम्हारे पास पैसा बचा है। एंटरटेनमेंट, फूड, ट्रैवलिंग, करेक्ट? यही हो रहा है। तुम आजू बाजू देखोगे तो लोग स्पेंड कर ही रहे। इंस्टाग्राम रील देखोगे तो पता है हर बार ट्रैवल्स काफी बढ़ गए इंडिया में। क्लोथिंग है, यस, क्लोथिंग इज वन। बेसिक रिसर्च, ग्राउंड लेवल रिसर्च। लग्जरी ब्रांड्स, रियाना का आज ही था, पता है? रियाना स्टार्टेड इज ब्रांड, कोलैबोरेटेड विथ, सॉरी, अंबानी हैज टेकन ओवर दीपिका का ब्रांड। स्पेंड इज इंक्रीजिंग, तो मैंने क्लोथिंग है, वन इज क्लोथिंग, यस, वन इज फूड, डेफिनेटली। कॉस्मेटिक्स है, यस, कॉस्मेटिक्स है। प्रोसेस फूड, यस, फूड में प्रोसेस हो गया। ये मेरा फोकस है बिकॉज दिस थिंग्स आई कैन लिंक। मुझे इसके बारे में कोई भी पूछे, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। कैन आई से दैट? क्लोथिंग के बारे में तुम ब्रांड्स के नाम ले सकते हो, कितने का आता है ब्रांड, क्या प्राइस है। फूड में भी, कॉस्मेटिक्स, एंड हाँ, बचा एक ट्रैवलिंग, करेक्ट? तुमने ना अगर ऑटोमोबाइल नंबर्स देखे होंगे ना, अगर इफ यू ट्रैक, अभी ये प्रॉब्लम है कि यू डोंट ट्रैक इट, तुम सिर्फ एक ही सेक्टर लेके बैठ जाते हो। डिजायर, अच्छा, तुमको रास्ते पे कौन सी गाड़ी दिखती है आजकल? डू यू सी एसयूवीज मोर और सिडान्स मोर? कौन सी दिखती है रास्ते पे? एसयूवीज, ट्रेंड चल रहा है एसयूवीज का। मारुति के नंबर्स देखोगे ना, डिजायर वॉज अ टॉप सेलिंग मॉडल। क्यों? डिजायर किस में दिखती है? डिजायर गाइस, तुम अगर बाहर देखोगे तो ध्यान रखो जरा, बाहर देखते हो डिजायर का सेल्स किस में दिखता है? टैक्सीज, टैक्सीज। कैन आई से it is linked to somewhat traveling and tourism? Can I say that? Can I say yes? Definitely, definitely, ट्रैवल और टूरिज्म में सेल्स आर इंक्रीजिंग। अगर तुम लास्ट 1 महीने, 2-3 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रोज न्यूज़पेपर में देर इज कमिंग दैट होटल्स आर एक्सपांडिंग। ये होटल वहां पे एक्सपांड हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। न्यू न्यू होटल्स आर एक्सपांडिंग। तुमको पता है पिलग्रिमेज टूरिज्म इंडिया में बढ़ गया है। अयोध्या, राम मंदिर, प्रयागराज, तुम्हारा वो गंगा आरती, साउथ में टेम्पल्स में ग्रो हो रहा है। वापस अंबरनाथ यात्रा इज गोना स्टार्ट। दिल्ली देहरादून हाईवे खुला है, समृद्धि महामार्ग खुला है। इंडिया में देर इज एक्सपेक्टेड कि 157 नए एयरपोर्ट्स होने वाले हैं इंडिया में। पता है कितना डेटा मैंने बात किया तुमसे? रोड्स, ट्रैवल, मारुति का डेटा, ये डिजायर का। देन आई टॉक्ट अबाउट रोड, सॉरी, रोड एयरपोर्ट्स विच आर हैपनिंग। होटल का एक्सपांशन हो रहा है। कैन आई से दिस इज ऑल रिलेटेड? और इसका ना मेरे पास पूरा डेटा पॉइंट है। लास्ट 1 महीने के पेपर में, मेरे कॉन्फ्रेंस पर, तुम हमारे मॉर्निंग कॉल देख लो, हमने यही बात की है। रोज के रोज देर इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। अभी ये तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुमने एक चीज पढ़ लिया कि डिमांड बढ़ रही है क्योंकि गर्मी हो रही है। किसी ने पढ़ लिया मेटल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो बढ़ने वाले हैं। ये सब शॉर्ट टर्म्स है। कल उठ के इंडिया में वेदर चेंज हो गया, तुम बोलोगे सर अभी पावर का डिमांड खत्म हो गया। और अगर पावर का डिमांड बढ़ रहा है, दुनिया भर को पता है कि ऐसा हो रहा है। मैंने भी बोला टूरिज्म बढ़ रहा है, बट यू नो हाउ मच थिंग्स आर लिंक्ड इट टू। मैं भी बोल सकता ना होटल में एक्सपांड, जस्ट गंगराज इज सेइंग गंगराज होटल आर एक्सपांडिंग है, तो मैं भी बोल सकता ना होटल की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और नए होटल आ रहे तो इसका ग्रोथ होगा। इज इट?
सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन से ग्रोथ होता है? नहीं ना। रोड्स हो रहा है, एयरपोर्ट्स हो रहा है, गाड़ियों का सेल्स हो रहा है। तो मैंने क्या कौन से सेक्टर्स ऐड किए? इंफ्रा ऐड किया मैंने। टूरिज्म में भी स्पेसिफिक पिलग्रिमेज की बात की, टूरिज्म सेक्टर में एक इंडस्ट्री की बात की। उसके बाद आई टॉक्ट अबाउट एयर ट्रेवल्स। एयर ट्रेवल्स भी है। एयर ट्रेवल्स अगर तुम देखोगे इंडिया में एयर ट्रेवल्स बढ़ रहा है। रिसेंटली आई विल टेल यू वन, एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, जहां पे पता है अभी वॉर चल रहा था इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में वॉर चल रहा था। तो वॉर के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलमोस्ट बैन थे, मतलब बंद हो चुके थे। एंड बताइए वॉर के सिचुएशन में तुम हिम्मत करोगे क्या यूरोप जाने का या दुबई जाने का? हिम्मत करोगे? कहने से टूरिज्म डिक्लाइन हो गया था ये वॉर के चलते। ना इन दिस अभी चलो, देयर वाज एन आर्टिकल ना, एक आर्टिकल था जहां पे कपल का आर्टिकल लिखा था। कपल सेड दैट वी यूज्ड टू गो फॉर, आई एम नॉट कमिंग ऑन टू दैट इंडस्ट्री, वी यूज्ड टू गो फॉर एवरी ईयर, वी यूज्ड टू गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप। अभी ये साल क्या हो गया? ये साल बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन वी वर वी डिडंट गो आउटसाइड, इंडिया के बाहर नहीं गए हम लोग, इंडिया में ही घूमे। अभी जब गए सब इंटरनेशनल टूर करते तुम्हारा बजट पर पर पर्सन 2 लाख के ऊपर होता है मिनिमम। किधर भी जाओ तुम 1 से 2 लाख के ऊपर पर पर्सन। इवन इफ यू टेक डोमेस्टिक नॉर्मल सस्ता होता लेके जाओ, 1 वीक का टूर 1 लाख तो मिनिमम होता है, 1-1.5 लाख तो। ना तुम्हारे पास बजट है 1-1.5 लाख का, अभी तुमको इंडिया में घूमना है। विच होटल विल यू सिलेक्ट? विल यू सिलेक्ट अ होटल विच इज 3 to 5,000, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, या अबाउट 20? कौन सा होटल चूज करोगे? चलो 3 to 5 तो छोड़ ही देते, 5 to 10 से चालू कर। तुम बताओ, यू हैव अ बजट ऑफ 2 lakhs, 2 लाख का बजट है, होटल बात कर रहा हूँ मैं, 5 to 10,000 पर रूम। हाँ भाई, आप अप्रोक्सीमेट में बात कर रहा हूँ, चलो वीकेंड का। विच इज द होटल विल यू प्रेफर? एक तुम्हारा पकड़ो ना, तुम्हारा सैलरी 10-15 लाख है, तुम्हारा बजट था 2 लाख का, या चलो अभी भी तुम इफ यू गेट एन इक्विप बिकम एन एनालिस्ट, 10 लाख का सैलरी है, तुम कौन से होटल में जाना प्रेफर करोगे? चलो घूमने भी गए, चलो प्रयागराज घूमने गए या पिलग्रिमेज, या चलो कहीं भी चले गए, 10 to 15, 10 to 15, यस स्पेसिफिकली। इफ यू हैव अ बिगर बजट, चलो 15 to 20, थोड़ा बहुत तुम्हारा बोनस आ गया, कुछ आ गया। तो अगर मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री पे रिसर्च करना है तो कौन से होटल्स में चूज करूंगा? 5 to 10 या 20 के ऊपर, या ये कम, या ये? आई गिव यू डेटा। टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, एयर ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है, रोड्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज हैपनिंग। उसके बाद तुम्हारे लोगों का पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है। दिस आर द 3 पॉइंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एयरपोर्ट्स हो रहे हैं इंडिया में। सो डेफिनेटली डेफिनेटली तुमको रिसर्च करना चाहिए ये 2 कंपनीज में, ये 2 सेगमेंट्स में। देर इज अ सेगमेंट ऑफ लीला विच इज हैविंग एन एवरेज रूम रेट ऑफ मोर देन 30,000। ऐसा भी है। 20 में ताज ओबराय आता है, ठीक है, 30 के में लीला आता है। ताज भी आता है, लीला और ताज भी आता है, सम थोड़े बहुत आता है, बट लीला का 30 के ऊपर ही आता है। डिपेंड करता है कौन सा इनकम ट्रैवल करता है। मनराज तुम बताओ, गरीब ट्रैवल करता है इंडिया में या मिडिल क्लास ट्रैवल करता है? मिडिल क्लास, करेक्ट। इंडिया का अच्छा, और मिडिल क्लास, अगर तुम डेटा पॉइंट्स बोलोगे ना, मिडिल क्लास इन इंडिया, द इनकम ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया इज एक्सपांडिंग। आर्टिकल पढ़ लेना, रिसेंटली आया था। द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज एक्सपांडिंग, पूरा डेटा पॉइंट्स के साथ था। पहले कितना मिडिल क्लास कमाने का, अभी कितना मिडिल क्लास कमा रहा है। इन दैट मिडिल क्लास, obviously this segment is gonna increase.
एंड अगर ये सेगमेंट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ये सेगमेंट तुम्हारा इंक्रीज, तो विच स्टॉक शुड यू रिसर्च ऑन? तो पहले तो इंडस्ट्री रिसर्च होती है, क्यों, व्हाई डिड यू चूज टूरिज्म, सर ये चीज हो रही है। उसके बाद उसमें से तुमने कौन सा स्टॉक चूज किया, वो स्टॉक क्यों चूज किया, एंड देन इट कम्स अबाउट द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इज द फोर्थ पॉइंट। पहले तो इंडस्ट्री, कंपनी, सेगमेंट, सेक्टर, फिर 4 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है। 4 का तुम 6 कर सकते हो डिपेंडिंग, अगर तुम्हारे पास डेटा है तो। ये हो गया तुम्हारा टूरिज्म, ठीक है। दूसरा मैं आता हूं, दूसरे आई एम नाउ, ये थोड़ा एक स्टार्टअप कंपनीज है जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इफ यू नो हाउ टू वैल्यू अ स्टार्टअप देन फाइन। लॉन्ग टर्म स्टोरी, इंडिया में, इंडिया में गाइस, इज इट एडवाइजेबल नाउ टू बाय अ टू व्हीलर पेट्रोल व्हीकल और अ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल? तुम बताओ, अगर तुमको टू व्हीलर स्कूटर लेनी है, मोटरसाइकिल की नहीं बात कर रहा हूँ, स्कूटर्स, तुमको स्कूटर्स लेना है, तो ईवी ज्यादा प्रेफरेबल है या तुम्हारा पेट्रोल वाला? ईवी, ईवी ज्यादा प्रेफरेबल है। यू नो व्हाई? पहले तो कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम है, ठीक है, रनिंग कॉस्ट कम है। दूसरा है कि तुम ऑब्वियसली ईवी लेके तुम क्या हाईवे पे नहीं जाते, तो स्कूटर लेके तुम हाईवे पे नहीं जाते, तुम आसपास ही घूमते हो। एंड आज के स्कूटर्स में जो ईवी है उसमें गूगल मैप्स आते हैं, फोन कनेक्ट होता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग। डेटा पॉइंट्स की बात करें तो ईवी का पेनिट्रेशन वॉज 6%, 6%, नाउ इट हैज गॉन टू 9%। हाँ, पेट्रोल में ईशान ग्रोथ हो रही है, करेक्ट, पेट्रोल में ग्रोथ हो रही है। पर कहना चाहिए ईशान, पेट्रोल तो इंडिया में कितने टाइम से हो ही रहा है। मतलब मैं बोलता हूँ कि इंडिया में पेट्रोल गाड़ी 1 लाख बिक रही है, चलो पूरी महीने की, तो 1 लाख पे और कितना ग्रोथ होगा? 5%, 10%। इंडिया में ईवी 10,000 ही बिक रही है। हाँ, अगर तुम ईशान पेपर पढ़ते हो तो ईवी का पेनिट्रेशन अगर मैं तुमको पूछूं, तो तुमको पता होना चाहिए कि ईवी का पेनिट्रेशन 6% था लास्ट ईयर तक, अभी हुआ है 9%। मतलब आउट ऑफ द, मैं बोलूँ ना पेट्रोल व्हीकल्स, उसमें से 9% लोग ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या मैं तुमसे पोल नहीं ले रहा हूँ कि क्या बढ़ रहा है, मैं डेटा पॉइंट में बात कर रहा हूँ। देखो अपन 6% से 9% हुआ है, विच इज एस्टिमेटेड टू गो बाय 15%। हाँ, ऑटो नंबर्स आज आज आए हैं, देख लेना, ईवी के सेल्स वापस बढ़ गए हैं। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस नहीं बना रहा हूँ कि हाँ ईवी मुझे लगता है ग्रो होगा, क्योंकि मुझे दिख रही है, डेटा पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ कि ईवी ग्रो हो रही है। हाँ, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ईवीज, करेक्ट, बट स्पेसिफिकली आई मेंशन दैट इट वाज टू व्हीलर ईवीज, टू व्हीलर स्कूटर्स बोला, वो भी टू व्हीलर स्कूटर्स तुम्हारे घर पे चार्ज होती है, घर के नीचे एक प्लग होता है, उससे चार्ज होती है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इतनी नहीं है जितनी फोर व्हीलर को लगती है। हाँ, तुम भले बोलो कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग बट बाय कर रहे हैं, 15% ऑफ द पीपल आर बाइंग। तो 10,000 से अगर पेट्रोल इंडस्ट्री 10% भी बढ़ा, पता है ईवी विल ग्रो एट 1.5 टाइम्स, ईवी विल ग्रो एट 30%। तो मुझे बताओ इंडिया में कौन से टॉप 3 ईवी बिकती है, बताओ, टॉप 3 ईवी कौन से बिकती है कंपनी वाइज, पता है? गलत गलत गलत, एवरीवन इज रॉन्ग। फर्स्ट इज टीवीएस, सेकंड इज बजाज, थर्ड इज एथर, फोर्थ इज वीडा, फिफ्थ इज ओला। हाँ, मुझे क्यों पता है, मुझे क्यों पता है, मेरे पास पूरा डेटा है। 1 लाख ईवी बिकती है इंडिया में महीने की, उसमें से 30% मार्केट शेयर इज ऑफ टीवीएस आई क्यूब का, उसके बाद 20% इज ऑफ बजाज, बजाज का चेतक है, तो उसमें से, और फिर 18% पे वापस तुम्हारा एथर आता है, तो एथर एंड बजाज आर नेक टू नेक। उसके बाद 10% पे विडा आता है, ओला का 8% हो चुका है, ऐसा कुछ है। ओला का मार्केट शेयर काफी टाइम में, ये टाइम पे बहुत गिरा है। ऑल आर रॉन्ग। क्यों ऐसे गलत है, वाई आर यू रॉन्ग ऑन दिस? ओला, एथर, सब गलत हो। टीवीएस का आई क्यूब किसी ने आंसर ही नहीं किया, दैट इज वाई। डेटा पॉइंट्स
रिसर्च करने ऐसा एक दिन में रिसर्च नहीं होने वाला, ये ध्यान लो। तुम अगर रेगुलरली किसी एनालिस्ट के कांटेक्ट में नहीं हो, आज तुमको पता चल गया बट स्टिल यू डोंट हैव द डेटा पॉइंट्स। मेरे सब स्टूडेंट के पास डेटा पॉइंट्स है। अभी एक का कल ही एक का इंटरव्यू क्रैक हुआ है। वो मुझे कल वही थैंक यू बोला था कि सर आप जो बोल रहे हो डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं इंटरव्यू में, वरना तो सब स्टोरी है, वरना तो एआई तुमसे अच्छा स्टोरी लिख देगा। ये हो गया माइंडसेट ऑफ बीइंग एन एनालिस्ट। इट इज नेवर अबाउट द स्टॉक, इट इज अबाउट हाउ आर यू ग्रोइंग, इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है और तुम कहाँ पे हो उसमें। इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं तो कभी ऐसे कंपनीज पे रिसर्च ही नहीं करता जहां पे मुझे उसका डेटा नहीं मिलता या मेरा मैनेजमेंट कनेक्ट नहीं है। अगर मैं बी टू बी ट्रैक कर रहा हूँ और मेरा मैनेजमेंट कनेक्ट नहीं है, तो वो कंपनीज ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पेनिट्रेशन याद रखना, पेनिट्रेशन इंडिया में 6% है, लास्ट मार्च में 9% तक हुआ था, विच इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 15%। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू व्हीलर्स स्कूटर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जितना फोर व्हीलर्स को हो रहा है। एंड अगर तुम रिसेंटली, अगर मैं तुमको और गवर्नमेंट रिलेटेड बात करूं, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे हैव स्टॉप द दे विल स्टॉप आइस वेरिएंट इन स्कूटर्स इन दिल्ली। आया था ना ये न्यूज, पता है? आया था। आइस वेरिएंट नहीं तो गूगल कर लो, आया था। हमारे मॉर्निंग कॉल में मैंने बात की थी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इनफैक्ट। तो ये होता है रिसर्च। तो दोज हु हैव रजिस्टर्ड, तो मुझे तुम्हारा ये माइंडसेट चाहिए। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंपनी वाइड, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो रिसर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। इट इज अबाउट वो कंपनी का रिसर्च कर क्यों रहा है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट देन यस, आई वुड लाइक टू टेक योर इंटरव्यू, समझने को कि तुम क्या लेवल पे जाकर रिसर्च कर रहे हो, तुम कितना एफर्ट्स डाल रहे हो डेटा पॉइंट्स फाइंड करने में। वो डेटा पॉइंट्स उनको साथ साथ नहीं मिलेंगे, ऐसा क्विकली एक दिन देख के नहीं मिलने वाले तुमको। इसके लिए बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखने को तुमको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। और तुम अगर कल मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट लिखो, तो तुमने अगर कभी कुछ किया ही नहीं होगा तो नहीं मिलेगा तुम्हारा। अननेसेसरीली तुम्हारा जो रिसर्च है वो रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन नाउ अनु, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड नॉट ट्रैकिंग बी टू बी इफ यू डोंट हैव मैन। हाँ, लॉजिक नहीं बोल रहा हूँ, डेटा पॉइंट्स नहीं मिलते अनुज, और कुछ नहीं। तुमको मिलते डेटा पॉइंट्स तो ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आज टाटा स्टील ने मारुति को स्टील बेचा, तुमको पता है भी ये कितना बेचा। एग्जाम्पल, टाटा स्टील का कॉम्पिटिटर ये है, अरे से योर नॉट कॉम्पिटिटर, कस्टमर इज टाटा मोटर्स, योर मारुति होंडा है। कितना स्टील बिकता है, क्या क्वालिटी का स्टील होता है, कितने में बिकते हैं, मिलता है क्या डेटा? नहीं मिलता। किसको बिकते हैं, हु आर द बायर ऑफ द स्टील, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन ले रहा है स्टील, क्यों लग रहा है स्टील। फिर स्टील ट्रैक करना है बी टू बी में ना, प्रॉब्लम इज अनुज, यू कैन नॉट ट्रैक द कंपनीज, यू हैव टू ट्रैक द इंडस्ट्री। तुमको स्टील ट्रैक करना, तुमको पता है क्या क्या ट्रैक करना पड़ेगा स्टील ट्रैक करना है तो? पहले ऑटोस, रियल एस्टेट, स्टील कहाँ पे लगता है। अभी तक ये सेक्टर के बाद तुम स्टील सेक्टर समझ पाओगे। तो स्टील सेक्टर तुमको एज अ फ्रेशर रिसर्च करना चाहिए, एज एन एक्सपीरियंस रिसर्च करना चाहिए। इट्स ऑलवेज अबाउट एक्सपीरियंस। कि तुमने इतने साल अगर रिसर्च में नहीं, अगर मुझे ऑटो के बारे में नहीं पता, मुझे रियल एस्टेट के बारे में नहीं पता, मुझे अगर जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो मैं स्टील का रिसर्च करूँ ही कैसे? जस्ट बिकॉज कैपेसिटी एक्सपांड हो रही है, नहीं ना। तो फिर खत्म हो गया रिसर्च कैपेसिटी एक्सपांशन पे। सीमेंट भी अगेन प्रबल, सीमेंट भी कहाँ कहाँ पे लगता है, रियल एस्टेट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च करना तो भूल ही जाओ, इतना डिफिकल्ट है। पहला एक क्वेश्चन आएगा, इंडिया में कितने रोड बन रहे हैं, एक रोड बनने को कितना सीमेंट लगता है। मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में, फर्स्ट ही क्वेश्चन, वैल्यूएशन सब बाहर में गया। एक रोड बनाने में, 1 किलोमीटर रोड बनाने में कितना सीमेंट लगता है, कौन से ग्रेड का सीमेंट लगता है, कितने में आता है सीमेंट। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था पहले ही, फर्स्ट ही क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। सीमेंट सेक्टर लेके गया था मैं तब। गवर्नमेंट कितना सोर्स करती है, गवर्नमेंट कितना लेती है, प्राइवेट कितना लेती है, ये था।
sir, for students like us who are just starting out in their careers, how do we collect data points apart from the ones who are publicly available? What are the resources we can turn to, especially if we are researching independently? So, Minerva, yes. So you have to track the conference calls, you have to track the annual report, you have to track the PPT, you have to read newspapers, collect data from newspapers, specifically industry data, and then collate all those things into our financial models. So we do the same thing. इसके लिए I be online every day 10:30 to 11:30. We never miss the morning call. In the last 1.5 years, ऐसा बहुत कम time हुआ that I have missed the morning calls because I also know the importance of reading newspapers on a daily basis. एक लड़का था क्रिजिल में सिलेक्ट हुआ, बीकॉम था, बीकॉम एंड सीएफए लेवल 1 था. He got selected in क्रिजिल just because he was consistently speaking on one sector. रोज पेपर में आने की उसी की बात करने के, क्योंकि लेवल 1 था तो मॉडलिंग और रिपोर्ट राइटिंग तो आने का उसको. क्वेश्चन था कि प्रेजेंटेशन, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग इट. तो रोज 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 वही प्रेजेंट करके ही वाज सो गुड एट इट कि सर हम जो रोज, उसने बोला भी सर, मैंने उसको रेकमेंड नहीं किया था क्रिजिल में. क्रिजिल में तो बिना एमबीए के लेते ही है, बिना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के. मतलब तुझे मिला कैसे? तो नहीं सर, हम जो कर रहे थे, मैंने रिपोर्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिया एंड मुझे कॉल आ गया. एज अ फ्रेशर मुझे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे. दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक सेक्टर के बारे में बात करो एंड हाउ डू एनालाइज इट, बस बोल दिया. Yeah, FMCG is good, Sakshi. FMCG is a good sector. जहाँ पे you can track things because the things that we eat. I'll give an example of FMCG. 1 second. So according to me, demand slowly depends upon the GDP growth rate for sectors like cement and steel. हाँ, डिमांड को ही तो अनुज ना, डिमांड फोरकास्टिंग इज नॉट अ बिग थिंग. जैसे अभी वही पावर की बात की, डिमांड तो है ही मार्केट में. क्वेश्चन वही आता है कि अरे डिमांड तो है ही, तो तुम क्या रिसर्च कर रहे हो. तो ये सब B2B में वही एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है. अभी एग्जीक्यूशन जानने को तुम लैपटॉप पे बैठ के एग्जीक्यूशन या घर पे बैठ के एग्जीक्यूशन नहीं देख सकते. तुमको इंडस्ट्री कनेक्ट चाहिए उसके लिए. दैट इज व्हाई आई से अवॉइड B2B सेक्टर्स. उनको एक्चुअली जाके देखना चाहिए उतने रोड बन रहे हैं कि नहीं, उतना तुम्हारा कनेक्शन चाहिए इंडस्ट्री में. उनको पता है, मैं जब सीमेंट, मेरा फ्रेंड था सीमेंट एनालिस्ट, हमारे डीलर्स को हम हर 10 दिन बाद फोन करने गए, सीमेंट का प्राइस क्या हुआ, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, कौन सीमेंट बाय कर रहा है, तुम्हारे बेच रहे हैं कि नहीं. ऐसा है. यस, बिल्डर्स, रिटेलर्स, कितने बिल्डर्स यूज का, कितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं पूरे इंडिया का. तो इंडिया का प्रबल वो घर पे बैठ के तो नहीं होगा. अरे so why do we need the data for demand related to sectors like how much steel is getting sold to auto and infra? So स्टील कहाँ पे यूज होता है? मेजरली इंडिया का स्टील कंजम्पशन तो ऑटो सेक्टर में होता है ना, रियल एस्टेट में होता है, इंफ्रा में होता है. तो डू यू अंडरस्टैंड रियल एस्टेट सेक्टर? डू यू अंडरस्टैंड ऑटो सेक्टर? व्हाट इफ ऑटो सेक्टर का सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, स्टील भी गिरेगा. यस. यूएस, चाइना से स्टील इंडिया में डंप होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना स्टील एंड तुम्हारा स्टील? ये सब चीजें बहुत इकोनॉमी लेवल पे चली जाती है. डिफिकल्ट होता है. इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रेजेंट योर थीसिस इन द इंटरव्यूज. लेट मी कम ऑन एफएमसीजी. ये सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, नाउ आई एम ट्रैकिंग टाटा कंज्यूमर्स. ठीक है, मैं ना हर वीकेंड को, अभी भी मेरा प्लान है, वी आर गोइंग इन डीमार्ट. ठीक है, अभी डीमार्ट पे जाके मैं क्या करता हूँ, डीमार्ट, स्टार बाजार, रिलायंस रिटेल, ये ना सब, और मेरे 2-3 किराना स्टोर्स है. यहाँ पे मैं हर वीकेंड को जाके ये देखता हूँ कि उनके शेल्फ पे कौन से प्रोडक्ट्स है. बिस्किट्स, ग्रोसरी में भी टाटा कंज्यूमर्स बिकता है. तुम्हारा टी, कॉफी, फिर उसके बाद उसके ड्राई फ्रूट्स आजकल बिकने लग गया है वो, उसके वो चिंग सॉसेस, वो सब है. आई हैव अ लुक एट ऑल दिस. एचयूएल के सब प्रोडक्ट मुझे बाहर है, एचयूएल के प्रोडक्ट दिख रहे हैं कि नहीं, एचयूएल, मैरिको, डाबर, ये शेल्फ पे जाके मैं प्रोडक्ट्स चेक करता हूँ कि ये दिख रहे हैं कि नहीं. एवरी वीक आई गो, कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आई कीप एन आई ऑन दैट, क्योंकि एफएमसीजी का डिमांड डीमार्ट ही ड्राइव करता है. एग्री? इंडिया में. और दूसरा है क्विक कॉमर्स, विच इज ड्राइविंग द डिमांड इन इंडिया.
क्विक कॉमर्स पे तुम रिसेंटली देखोगे तो HUL के प्रोडक्ट्स ना इतने मिलते नहीं है, क्योंकि आजकल ना वो D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं क्विक कॉमर्स को। बट हाँ, डीमार्ट को अभी तक कोई बीट नहीं है। दूसरा है टाटा स्टार बाजार। स्टार बाजार का ग्रोथ रोज हो रहा है, मतलब मैंने मेरे एरिया में देखे 2-3 स्टार बाजार खुले मेरे एरिया में। तो मुझे लगा क्या है, अननेसेसरी एक्सपांशन हो रहा है, स्टार बाजार बढ़ रहा है। बट वहां पे लोग दिखते हैं मुझे, वीकेंड्स को मुझे आता ना लोग दिखते हैं। वो वॉचमैन को जाके पूछ के आता है कोई आता है क्या स्टोर में। इनफैक्ट मैं तो जाके, खासकर जाके, मेरी मेरी वाइफ शी ड्रिंक्स नेस्कैफे कॉफी, मैंने उसको जानबूझ के कॉफी, टाटा कॉफी लेके दिया कि नहीं तू ये कॉफी पी, मुझे बता कि ये कॉफी अच्छी लगती है कि नहीं तुझको। चीज है नहीं, बकवास कॉफी है। तो ऐसे कॉफी, फिर टाटा कॉफी लोग पी नहीं रहे हैं। ये मेरा एक पर्सनल। और 4 जन को मैंने फैमिली में पूछा कोई टाटा कॉफी पीता है क्या, लोगों ने नेस्कैफे का ही नाम लिया। अच्छा, वही प्रॉब्लम है, नेस्कैफे इज एक्सपेंसिव, टाटा का आता है सस्ता। तो जाके मैंने मेरे भाई को पूछा, मेरी मेड को, तुम घर पे कौन सा चाय पीते हो। उसने टाटा का ही नाम लिया, चाय और कॉफी। कॉफी पीना है तो टाटा की भी सस्ती आती है कंपेयर टू अदर्स। और 2-3 कंपनी बोला उसने। यूजुअली नाउ मिडिल क्लास या मे बी वो लोअर इनकम कैटेगरी कॉफी नहीं पीते, वो लोग चाय ही पीते हैं। दे डोंट ड्रिंक कॉफी। पर अगर कॉफी पीना है तो टाटा कॉफी की बात है। ड्राइवर को मेरे पूछता हूँ मैं, ऑफिस में जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको जाके पूछता हूँ तुम घर पे क्या करते हो। आई डोंट हैव अ शेम इन आस्किंग देम। ये जाके ना मेरे स्टूडेंट ने ऐसे जाके इंटरव्यू में बात की थी, क्योंकि इंटरव्यू में उसको क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। बोलते सर मैं डी मार्ट गया था, वहां पे मैंने एक आदमी को पकड़ा, मतलब जहाँ पे जो स्टोर मैनेजर होता है उसको मैंने रोज जाके बात करने का। सर तो मैंने ये एनालिसिस किया है लास्ट 1-2 महीने में, कि हर वीक जाके मैं उसको पूछने का, सर मैंने ये नोटिस किया। उसने 4-5 अलग ब्रांड के नाम भी बताया जो वो खुद एनालिस्ट को पता नहीं थे कि ऐसे भी ब्रांड आते हैं मार्केट में। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट, कि अरे ऐसे भी ब्रांड है, ये तो मैंने देखा नहीं डीमार्ट में, मेरा ध्यान नहीं गया। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एक्चुअल ग्राउंड लेवल रिसर्च। आज मैं टाटा, आई एम होल्डिंग टाटा कंज्यूमर्स, बोल रहा हूँ टेलिंग कि मेरे पास है टाटा कंज्यूमर्स। मेरा हर वीकेंड को जाके टाटा स्टार बाजार में जाके एक राउंड होता है कि ये कंपनीज के प्रोडक्ट बिक रहे हैं कि नहीं। क्योंकि स्टार बाजार में जाओगे ना, तुम कभी जाके देखना, अभी स्टार बाजार में जाओगे तो सिर्फ टाटा के प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, और वो टाटा कंज्यूमर्स बेचता है। ओके, सो ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है तुम्हारे रिसर्च को। कंटिन्यूसली नहीं करोगे, इंटरव्यू में प्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम वाले भी प्लेस हुए हैं, कि माइंडसेट रोज मेरे से यही सुनते हैं। कभी कभी तो वो आके मेरे को पता था कि सर मैं इधर गया था स्टार बाजार में, मैं डीमार्ट में गया था, मैंने मॉल में गया था, मैंने मॉल में ये देखा। मैंने तो कितने लोगों को बोला कि जाके ना बाइक चला के लेके आओ। ये एथर हम बात कर रहे थे, एथर और टू व्हीलर्स की, तो आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन हेवीली इन टू व्हीलर्स। क्यों? बिकॉज ये डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड शिफ्ट आई एम लुकिंग, कि टू व्हीलर सेगमेंट में हो रहा है, वो भी स्कूटर्स में। तो हु इज डोमिनेटिंग? टीवीएस इज डोमिनेटिंग। बजाज की चेतक है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें ना वो डिजिटल चीजें नहीं है, काफी अच्छे ओल्ड स्कूल लगती है, लोग लेते हैं, बायर्स है। बट आई थिंक टीवीएस की आई क्यूब एंड एथर की नई प्रोडक्ट आई है दैट इज कॉल्ड रिक्शा, डूइंग फैंटास्टिकली गुड। मेरे अभी भाई ने एथर ली थी, कजिन भाई ने, मैंने उसको फोन किया कि तूने एथर क्यों ली, इतने सारे मॉडल्स थे मार्केट में, एथर ही क्यों चूज की। उसने उसके अपने रीजन बताया। उसने एक मेजर रीजन मुझे बताया, एथर के चार्जिंग स्टेशन गली गली में है, जबकि टीवीएस और बजाज के अभी तक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात कर रहा था। कभी गूगल मैप पे डालो एथर चार्जिंग स्टेशन आसपास, चाहे तो अभी जाके देखने ला, एथर चार्जिंग स्टेशन आसपास सबसे ज्यादा तुमको एथर के दिखेंगे। हाँ, अभी ये क्यों, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं सीएफए हूँ, या क्योंकि मैं एमबीए हूँ, या क्योंकि मैं सीए हूँ? हैज इट दिस टू डू एनीथिंग विद द डिग्रीज? इवन अ नॉन कॉमर्स गाय कैन ऑल्सो क्लियर, एंड वी हैव डन इट। हमने 3-4 नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है, वो भी प्लेस हुए हैं, वो भी प्लेस हुए हैं। जस्ट दैट नैक ऑफ गेटिंग रिसर्च डन, है ना। रिपोर्ट राइटिंग वो तो मैं सिखा ही देता हूँ, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तुम मॉर्निंग कॉल देखोगे तो मैं हर एक का पर्सनली रिपोर्ट जाके उनको चिल्लाता भी रहता हूँ, कैसे बनाते हो तुम, कॉपी पेस्ट करने को भी नहीं आता तुमको रिपोर्ट, ऐसा है। सो आई वांट दैट लेवल ऑफ रिसर्च एंड द विल ऑफ वर्किंग 10-15 आवर्स अ डे। इफ यू कैन प्रूव इट, मुझे रेफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर सिर्फ तुम बोलोगे सर मैं रिपोर्ट बनाया है, मैंने मॉडल्स बनाया है, मैंने ये बनाया है, मैंने वो बनाया है, तो उसका तो सभी बना रहे हो, वो तुम कुछ अलग नहीं है, तो यू आर नॉट डिफरेंट कि मेरा स्टूडेंट कोई अलग नहीं है, सभी कर रहे हैं। ऐसा है, देर आर अदर ट्यूटर्स ऑल्सो हु आर गुड देन मी, आई एग्री, अच्छा है, पर मुझे वो ट्यूटर नहीं बनना है, मैं एनालिस्ट हूँ। मुझे इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात करो, उसको फ्रेम कैसे करना है वो मैं तुमको बता दूंगा कि फ्रेम कैसे करते हैं। तो क्विकली मैं 10 मिनट्स में तुमको बताता हूँ हाउ डू यू राइट द इन्वेस्टमेंट थीसिस। चलो मैं होटल की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट थीसिस अगर मुझे लिखने हैं, सो अच्छा आई विल राइट लेट्स से सैमी होटल। अभी हाँ, ये सैमी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये तो मेरा रिसर्च है, इट कैन ऑल्सो गिव ऑल्सो गो डाउन, बिकॉज वो 10-15 थाउजेंड का मैंने बात की ना, सैमी होटल्स कम इन दैट 10-15 थाउजेंड का रेंज। ओके, ना इन्वेस्टमेंट थीसिस, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थीसिस आई विल राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो रोड्स में आया। अच्छा, इसमें मैं क्या लिखूंगा, आई विल टॉक अबाउट रोड्स, एयरपोर्ट्स, फॉरेन एफटीए बोलते हैं, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, development of roads or the infrastructure development as roads, airports, FTA, domestic air traffic, and तुम्हारे GDP, नहीं सॉरी GDP तो बाद में है, ठीक है। दिस विल आई विल टॉक अबाउट विच इज रिलेटेड टू टूरिज्म, ये ग्रो हो रहा है, इसके लिए इंडिया में टूरिज्म ग्रो हो रहा है, ठीक है। सेकंड आया तुम्हारा इकोनॉमिकल पार्ट, अल्ट्रा नेट, अच्छा आई विल टॉक अबाउट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर hotels in mid scale segment as the middle income, middle class is expanding with per capita GD, G, GDP। तो मैं सिर्फ उनको हिंट दे रहा हूं क्या लिखना चाहिए, increasing demand for hotel in the mid scale segment as the middle class demand is expanding for per capita. Also MICE activity, that is meetings, invitation, corporate events and marriages, spending on marriages, ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, एक 1 सेकंड जैसे आई विल कम ऑन टू दैट, मैंने उनको बताया कि थॉट प्रोसेस क्या है मेरा। ये दो मेरे हो गए, तीसरा इसके लिए मुझे सैमी होटल, मतलब कि सैमी होटल्स, ये दो को लेके, ये दो का रिसर्च करके सैमी होटल्स इज एक्सपांडिंग, और मे बी इसका सैमी होटल्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज इनटू द, अभी इसको रेफ पर बोलते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड, एक रेवेन्यू पर, सॉरी रेफ पर नहीं होता है, ERR होता है, एवरेज रेवेन्यू, रेफ पर ऑक्यूपेंसी होती है। तो सैमी होटल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज इनटू द रेंज ऑफ, हमने जो बोला 10,000 to 15,000 रेंज। तो ये जब मैं बात करता हूं तो इसमें ऑब्वियसली मिडिल क्लास में आई विल टॉक अबाउट द एवरेज रेंज 10 to 15,000, फिर सेमी होटल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज इन दिस रेंज। एंड फोर्थ पार्ट, अगर फोर्थ मुझे लिखना है तो इसका एक्सपांशन, सेमी इज ऑल्सो एक्सपांडिंग इन, देयर आर टू पार्ट्स, एक लीजर है एंड देयर इज कॉर्पोरेट। सॉरी, तुमको तो इंडिया में टूरिज्म होटल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है जहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे बिजनेस सिटीज में ट्रैवल होता है, दूसरा ट्रैवल होता है लीजर ट्रैवल।
तो सैमी इज ऑल्सो एक्सपांडिंग इनटू डीजल। तो मैंने 2 पॉइंट बता दे मेरे कंपनी के, 2 पॉइंट मैंने बता दिए मेरे मेरे इंडस्ट्री के, इकोनॉमी के बारे में। फिफ्थ पॉइंट विल बी वैल्यूएशन। अभी जिनको समझता है ठीक है, जिनको नहीं समझता है कैन आइडियली अवॉइड दिस। वैल्यूएशन अगर बेसिक है तो ईवी बाय एबिटा, या अगर कोई बड़ी कंपनी है तो प्राइस टू अर्निंग्स, तुमको जितना वैल्यूएशन समझता है उस पर, वो मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग वीडियो में बताया कि कौन से सेक्टर पे कौन सा वैल्यूएशन यूज होता है। सो हम हिस्टोरिकल वैल्यूएशन ले सकते हैं, और यूजुअली असाइन करना होता है ना कि हम असाइंड अ पी ऑफ 10x 20x 30x, या कंपनी ज्यादा हाई वैल्यू पे ट्रेड है लो वैल्यू पे ट्रेड है, इट टोटली डिपेंड ऑन इज ग्रोथ रेट। तुम्हारा फ्यूचर एस्टिमेशन क्या है? तुम क्या एस्टिमेट कर रहे हो कि कितने रेट पे ये कंपनी ग्रो होगी? तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखने के लिए पहले तुमको एक फुल फ्लेज फाइनेंशियल मॉडल होना इज नेसेसरी। फिर कंपनी के बारे में समझना इज नेसेसरी कि उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में समझना जरूरी है कि बोले भले उसका प्रोडक्ट अच्छा है, बट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है क्या वो इसमें? जैसे लीला का है, लीला का भी 30,000 हाईएस्ट मार्जिन, 50% मार्जिन करता है लीला, इबिटा मार्जिन, बट इज इट अ गुड कंपनी? ग्रो होने वाला है क्या? ऐसे इंडिया में कितने लोग हैं जो 60%, सॉरी 60,000 रुपया 30,000 रुपया देके घर लेते, रूम रेंट जाते हैं? कितने लोग हैं ऐसे इंडिया में? उनको देखा है कि तुमने आसपास कोई है जो ना 30,000 रुपया देके वन नाइट रहता है, घूमने जाता है तब 30,000 रुपया वन नाइट रहता है? मैं भी नहीं करता हूँ, आई विल टेल यू, आई ऑल्सो डोंट गो। 30,000 फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये एंड वैल्यूएशन क्या होता है? तो दिस आर द 4 पॉइंट्स स्पेसिफिक, एंड इसके लिए इतना रिसर्च करना होता है। जैसे मैंने बोला ना, अभी ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं इतने टाइम से रिसर्च करते आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, विल कमिंग ऑन द मोड। हाँ, सो इन दिस मोड, सैमी बोला ये मोड था कि सैमी का पोर्टफोलियो वही कंपनीज वही रेंज में है जहां पे ARR 10 to 15,000 है, एंड वो रेंज में ये सेगमेंट वही रेंज में ग्रो हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। ये जो मिडिल क्लास जो स्पेंड कर रहे हैं, माइस एक्टिविटी जो हो रहा है, वो बेसिकली ये रेंज में हो रहा है। एंड ये कैसे दिख रहा है कि सैमी के ऑक्यूपेंसी लेवल भी बढ़ रहे हैं। एंड एक इंडस्ट्री डेटा है जहाँ पे वो लोग ने ऑक्यूपेंसी रेट की बात की है। ऑक्यूपेंसी अराउंड 70 to 80% इंडिया में है, जबकि सैमी की ऑक्यूपेंसी अराउंड 70% के आसपास ही है। एंड रिसेंटली अगर तुमसे कॉन्फ्रेंस कॉल सुनोगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि उनके माइस एक्टिविटी में ज्यादा ग्रो हो रहा है। वो लोग ना 10 से 15,000 के रेंज में नाउ दे आर गोइंग, तो उनका रेव पर भी इंक्रीज हो रहा है। देखो अभी भाविक, इफ आई टॉक अबाउट अगेन मोर पॉइंट, लेट्स से तुम्हारा, अगर तुम होटल चला रहे हो तो गैस ग्रोथ कैसे होगा? हाँ वही वाला, हाउ विल द ग्रोथ कम? भाविक चलो तुम बताओ, सिंस यू आस्किंग। तुम्हें होटल है, सैमी तुम्हारा होटल है, तुम्हारा ग्रोथ कैसे होगा? रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा? अदर्स ऑल्सो कैन आंसर। इफ यू वांट टू ग्रो, सैमी होटल का ग्रो करना है तुम्हारा है, तो हाउ विल इज पॉसिबल? हाँ, बुकिंग्स पर डे। अच्छा, बुकिंग्स पर डे उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी होता है। अच्छा, नाउ इफ आई से इंडस्ट्री में ऑक्यूपेंसी इज 80%, ओके, पूरे इंडस्ट्री में, क्या सैमी का 100% हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि पूरा रोज होटल फुल हो? इट पॉसिबल? नो। सो करेंटली सैमी का इज अराउंड 72%, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री का 80 नहीं है, इंडस्ट्री का कुछ 75, 70 to 75 के बीच में ही है। तो कहने से सैमी इज ऑपरेटिंग एट फुल फुल ऑक्यूपेंसी अप्रोक्सीमेट इंडस्ट्री वाइड। करेक्ट। तो अभी इसमें तो ग्रोथ होने से रहा, अभी कैसे होगा ग्रोथ? होटल एक्सपेंशन, कहने से दैट ग्रोथ होगा होटल एक्सपेंशन से। अच्छा, अगर मुझे मेरे कंपनी के मार्जिन बढ़ाने हैं तो कैसा होगा? हाउ विल आई इंक्रीज द मार्जिन? सैमी का एक रूम आता है 10,000 का, 10 नहीं है, 7,000 के आसपास है। व्हाट डू यू थिंक, मार्जिन कैसे इंप्रूव होंगे? ऑक्यूपेंसी का तो ऑप्शन चला गया, ये तो होने से रहा, थोड़ा बहुत हो सकता है।
होटल एक्सपेंशन से मार्जिन एक्सपांड होंगे गाइस, होटल एक्सपेंशन से मार्जिन एक्सपांड होंगे। तो कैसा होगा, व्हाट डू यू थिंक? कैन आई से इंक्रीजिंग द कॉस्ट, नहीं लो कॉस्ट नहीं मैम, इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द होटल्स, एक प्रीमियम सेगमेंट में जाके, ऐसा हो सकता है? यस, यस। सो वो मोड था सैमी का। सैमी इज नाउ गोइंग, एंड सैमी का क्या है कि 10,000 का ऑलरेडी एआरआर है, तो रूम है टू ग्रो। लीला होटल्स का ऑलरेडी 30,000 एआरआर है, होगा क्या उस पे रूम? 30 का क्या 40 होगा कि मैं बस अपना प्राइस बढ़ाते जाऊं और मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो सैमी में देयर इज अ रूम टू ग्रो। सो ये था उसका मोड, कि सैमी में अभी तक रूम अवेलेबल है टू ग्रो, तो दैट इज व्हाई आई लाइक सैमी मेजर। हाँ, बट उसका काफी सारा डेटा भी बैक्ड है, मुझे उसके बारे में पता है कंपनी क्या कर रही है। आई हैव द एंटायर लिस्ट ऑफ सैमी होटल्स, ये मेरा पूरा लिस्ट है कौन से सिटीज में। देखो मैंने ये भी किया, बिजनेस है, लीजर है, विल टेल यू। उसका पाइपलाइन है मेरे पास। सॉरी, आई हैव इट्स पाइपलाइन। सॉरी, दूसरे फाइल में है। आई हैव इट्स पाइपलाइन जहाँ पे इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल ग्रो। पीपीटी में, सॉरी, है कहाँ पे? तो आई हैव इट्स, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। आई हैव अ पाइपलाइन कि इसका पाइपलाइन होटल्स कितने हैं एंड कितने से ग्रो होने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो वन। एंड वो ग्रोथ इज एंटायरली इनटू लीजर सेगमेंट। Are there any hotels in that range? What is the market share of Sami hotels? And is there a market share increasing year on year? हाँ, तो भाविक, ये आंसर तुमको मुझे देना है, ठीक है? अगर तुम मुझे पूछ रहे हो एज एन एनालिस्ट, मेरे पास है इसका डेटा। इंडिया में देर आर 2 लाख होटल्स विच आर ब्रांडेड होटल्स। उसमें से सैमी का नंबर है 2 लाख कीज है इसके, 4,000 कीज है इसके। तो देख लेना, 4,900 कीज है, तुमको मार्केट शेयर मिल जाएगा। 2 लाख ब्रांडेड होटल्स है इंडिया में, 2 लाख कीज है, उसमें से 4,000 सिर्फ सैमी के है। ओके, अच्छा, 2 लाख, 1,80,000 है टू बी प्रिसाइज, 2 लाख होने वाले हैं, विच इज एस्टिमेटेड इन द नेक्स्ट 5 years टू बी अराउंड 3,50,000। मेजरली लोग FY 28 तक, 29 तक दे आर एक्सपेंडिंग, दे हैव अ पाइपलाइन ऑफ ह्यूज होटल 28-29 तक। उनको मार्केट हार्डली, इसका मार्केट से 4-5% होगा। एंड हाँ, तुम क्या और क्या बोल, हाँ, ऑलरेडी इन द रेंज। सैमी लेमन ट्री का अगर तुम देखोगे, लेमन ट्री इज इनटू अ मच चीपर रेंज। लेमन ट्री भी है 3 to 5,000 में है, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक। वो मास सेगमेंट में है। उसके भी थोड़े बहुत होटल्स है जो प्रीमियम रेंज में है, पर उसके मेजरली मास में है। तो क्या हो गया, लेमन ट्री का मार्जिन कम है थोड़े बहुत, कंपेरेटिवली टू सैमी, कंपेरेटिव टू द, अगर एक्सपेंशन की बात की तो सैमी में मिड स्केल दे हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: अपर स्केल, मिड स्केल, अपर अप स्केल, अपर मिड स्केल एंड मिड स्केल। तो जो अपर अप स्केल है दैट इज इनटू 15 to 20,000 के आसपास रूम्स है। वो बोल रहे हैं कि हमारे रेवेन्यू मिक्स में वो सबसे ज्यादा ग्रो होगा। मतलब अभी 40% है, दैट विल गो टू 60%, क्योंकि हम जो रूम्स ला रहे हैं वो प्रीमियम सेगमेंट में ला रहे हैं अभी, क्योंकि हमने वहां पे डिमांड देखा है। रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे तो हमने वही किया है। हाँ, अभी क्यों हो रहा है ना, वो आई टेल यू वो क्यों हो रहा है। मैं अभी, हम आज हम वही कर रहे थे हमारे सेशंस में, बताता वो हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट था कल, हमारा सेकंड सेशन है कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट। ये राई सैमी ऑर्डर के बारे में है यहाँ पे। Office absorption across Mumbai, Hyderabad, Pune and Chennai reaches 7 million square foot. यहाँ पे और एक जगह था बैंगलोर में, there is an office absorption which has with a market reaching around 12 million square feet. मतलब इतने सब ऑफिसेस का absorption हो रहा है in this
major cities. That is why they are increasing their hotels. कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट्स करूँ तो मेरे पास था, लेट मी सी, आज हम कर रहे थे, ने कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट्स किया था, तो वहां पे मेरे पास है थोड़े, ये हम कॉन्फ्रेंस रीड कर रहे थे, तो वहां पे देयर इज 170 हैदराबाद रूम इज प्लान्ड which will lift the ARR in the upper upscale segment. 220 Whitefield, West End block in Whitefield, Bangalore has commenced. जो अभी just commenced हुआ है, 4,900 total keys है. The contribution which is 42% अभी 60% होने वाला है. And there was something about one more. Hotels like Sheraton, Hyderabad, clearly outperforming the averages. Trinity Hotel has acquired last year, is expected to grow. ये 2-3 hotels वो लोग ने लास्ट में acquire किए थे. उनका एक फूड एंड बेवरेजेस है, फूड एंड बेवरेज सेगमेंट, वो पहले 6% ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, अभी दे आर कंट्रीब्यूटिंग 9%. अच्छा, लोग ने ये भी बोला है ऑक्यूपेंसी 55 से 60% के आसपास था, जो इट इज इंक्रीजिंग अराउंड 90%, कुछ लिखा था ये लोग ने, कोई तो एक सेशन आ गया, कहाँ पे तक लिखा था वो लोग ने कि इट इज ग्रोइंग बाय 90%. Okay, so guys, what I will do is I will like to ask few questions. मैं मेरा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ना, सो इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखते हैं. कल मैं थोड़ा वापस आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट, ये थोड़े डिटेल्स में तुमको बताता हूँ, एंड कल टुमारो आई विल गिव यू अ ब्रीफ ऑन दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द इंटर्न 10-day challenge. I will brief you on one of the things I want today, since I was trying to gauge कि students what mindset you are. कल I will tell you मेरा thesis क्या है, ये मैं सब कैसे लिखता हूँ. सैमी का मैं इन्वेस्टमेंट थीसिस कैसे लिखता हूँ, आई विल टेल यू, आई विल मेक एन एंटायर रिपोर्ट, एंड उसके बाद आई विल आई विल मेक अ 1-pager इन्वेस्टमेंट थीसिस रिपोर्ट. ठीक है, ये मैंने तुमको दिया है, चाहिए तो तुम रिसर्च करके आ जाना. यू कैन डू इट. मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें तुमको मिल रही हो. ओके, फ्रॉम टुमारो सेशन इफ वी टेक द चैलेंज, yeah, so you can, yes. Okay, those who have registered for the challenge, please ping me again. We have messaged you, but we have added also you to the group. But अगर कोई रह गया तो मुझे मैसेज करना that that I have been, or those who want to enroll also they can message me, sir I want to enroll for the challenge. 10-day challenge है. If you clear it, yes, I will take you for an internship in my company, because मुझे भी students refer करने ही है. And since it's in Pune, so I will paying you a stipend ताकि तुम्हारा रहने पीने का खर्चा चला जाए. Yes, you can enroll now. You can message on my number, that is 773-886-5262. Just giving you on the chat box. My number डाला है. So actually I plan to finish this, but ठीक है, अभी मुझे I also got understand what Mayank is thinking, what others are thinking ना, process कैसा है. Mayank, now you got कि मैं तुमसे क्या expect कर रहा था. तुमने बोला गलत नहीं था वो, पर मेरा expectation अलग था. Okay. Tomorrow also 3 to 5. From Monday it will be 10:30 to 11:30. See, उसके तो recordings है, recordings will be provided, but live आना is preferred. नहीं आते हैं तो obviously मतलब ठीक है, तुम सुन लेना क्या हो रहा है, but probably live आ जाना, ऐसा है, समझ जाएगा कुछ तो. I want to be a part of the challenge, but currently I am intern at Aditya Birla, so how can I do it? Prabal, how can you do it? क्या कर सकते हो? You can intern. What are you doing in Aditya Birla Capital, Prabal? चैलेंज तो वर्क फ्रॉम होम ही है गाइस. चैलेंज तो अगर इफ यू गेट सिलेक्टेड देन इट्स एन इंटर्नशिप. चैलेंज तो वर्क फ्रॉम होम ही है. इफ यू गेट सिलेक्टेड प्रबल, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, बट क्योंकि मुझे भी तो चाहिए ना काम करने को, मुझे मेरे साथ चाहिए, वरना हाउ विल आई रेफर यू, या मेरा भी काम कैसे होगा. या पेमेंट विल बी ऑन द QR कोड. यस, यस. Sir, want to know how it will be working professionals who is living in NCR. So see, if you cannot come offline, so I cannot pay you the stipend. ऐसा हो सकता है. If you are good enough, I can take you in my course. So I will give you the course for free. चलो वो समझ लेना, तुम्हारा स्टाइपेंड हो गया. ठीक है, तुम 3 महीने आ जाओ, बी इन द कोर्स. कि वो वर्क फ्रॉम होम है तो आई कैन गिव यू दैट ऑप्शन. अर्ली पे तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई वांट समथिंग टू बी डन.
Okay, तो अगर तुम होते तो I will give you my training for free. चलो, obviously it will be same like you're working for me. No, one page report, Kiran, I will tell you more about tomorrow. थोड़ा I will format this, मैंने format नहीं किया है, थोड़ा I will format it and do it. ये रिपोर्ट कैसे लिखना चाहिए. मैंने सिर्फ तुमको बोला था कि माइंडसेट क्या है, ये थोड़ा रिसर्च करके आ जाओ तो अच्छा होगा कल तक. Yeah, so you can can do that. So accommodation will be from, say, it will be the internship will be starting from 23rd May. That is weekends है. उसके बाद ही चालू होगा. After that, because I'm not there. 23rd, I'm not there for the first week of June. So it will start probably 23rd or from the second week of June. ऐसा. 23rd since classes are starting, so you can join that and then you can come offline from 22nd. Second week of June. So they are classes and internships are two different programs. Yes, classes and internships are two different programs, Arpita. Classes, वो training है, that is for 25,000 that we are doing. Those who do not know anything or ना, जो want to get into equity research, वो तो हमारा चल ही रहा है. ये मैंने एक अलग से चालू किया था for people. I just want to understand कि लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है. If you are actually doing someone, I can help you get a job. But हाँ, मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ काम करो. इसके लिए I am paying you that money. कि मेरे साथ आगे मुझे पता तो होना चाहिए, क्योंकि सिंस आई विल नॉट फोर्स यू टू टेक द कोर्स कि मेरा कोर्स आओ, कोर्स में ज्वाइन करो, फ्री में तुमको सैलरी दूंगा नहीं. बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ पीपल आस्किंग सर हमको सब आता है, तो ठीक है, आता है तो बेटर, आ जाओ मेरे साथ, मेरा भी काम हो जाएगा. ऐसा है. इसके लिए देयर इज अ चैलेंज कि, और फिर सबको नहीं देना है वो, क्योंकि फिर सब आके इट क्रिएट्स अ कियोस सडनली कि अरे यार सब आ जाते हैं, एंड दैट आई हैव टू स्पेंड माय टाइम उनको समझाने में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं. Yeah, tomorrow is the same timing. Today, 3 to 5. Kal bhi I will give you a brief on it. Those who have registered, please do come. One pager report is pending. We'll do it tomorrow since now the time is up. कल मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा. कल I will tell you how to make exactly a one pager report. Tape reading, investment decisions तो नहीं ले सकते, वो तो तुम्हारा पर्सनल होता है नीरज. But yeah, it helps you in that. अच्छा, any doubts you can unmute yourself. I'm there. I'm available. Doubts है तो पूछना. Any specific, any random doubts? It has nothing to do with our call. So I have a doubt. Yeah, sorry. I'm a little confused. Like the challenge will be starting from Monday, 4th May. Yes. It will be for Yes. the 10 days. Post challenge, the candidates who will be selected, they will be continuing with the internship. Correct. And for the challenge, we are supposed to pay 10,000. And for No, tomorrow's no. session, sorry, No, not 10,000. 1,000. Sorry, 1,000. 1,000. Yeah. Sorry. Yeah. And for tomorrow's session, people who have paid the money are only going to get the link. No. This is the same link for tomorrow. You can come and join. Obviously, from Monday there will be different link. Okay. This is for 2 days. Yeah. So Okay. tomorrow I have just said, this one page report, everyone do it. It's fine. ऐसा है. If you get तुमको अगर किसी और जॉब मिल रहा है तो you can always do that. You can make that report. ऐसा. Okay. Like there are people who know already how to invest, how to research. So but I was just helping them to frame their structure, nothing else. Hi Rohit, just Yeah, one thing to know. Actually, I'm a working professional, so just wanted to know that suppose this is the 10 days challenge that will be done on weekdays, and Yes. once suppose hypothetically if get selected, then the internship will be done on weekdays specifically or on weekends, because I just wanted to know my perspective, because I'm a working professional, so I just want to make an idea that how the things will be managed. Yeah, so Asana sir, what we'll do as a working professional, you can work as a freelancer with us. So that is up to you. I will give you a task, man. ये task मुझे करके चाहिए. Okay, Do it. Okay, for that week. got Yes, sir. it. Okay. So you can. So obviously you cannot show as an internship. So what we'll do is, so we'll give a freelancing project. Let's say if I think that you are better enough, I will tell you, Mayank, okay, do a research on this, read this conference call, make a report like this. So all things will be taught to you. क्योंकि sessions तो चलते रहेंगे. If you don't know, or if I tell you, Mayank, ऐसे specific चीजें करना है, तो I will give you the videos. ऐसा. मैंने बोला ना कि I will give you the course for free. तब जो मेरे students कर रहे हैं वही you will do it. ऐसा है. Okay, Since you are working. got it.
Okay. Where is office located in Pune? It's in Baudan, Neeraj. It's in Okay. Baudan, Pune, next to the highway. Okay. Any more questions? Any more questions? One second. Sir, how I have to do sector analysis of cement? So please guide me. करना है क्या मतलब प्रबल that is difficult. Sector analysis के लिए cement is not a sector. Cement is an ancillary sector. You never analyze cement sector. You analyze the sector which is impacting the cement sector. You have to track infra. You have to track real estate. और कहाँ पे सीमेंट यूज होता है क्या जहाँ पे सीमेंट यूज होता है मेजरली तो इंफ्रा में यूज होता है यू हैव टू ट्रैक द इंफ्रास्यूटिकल सेक्टर एंड इंफ्रा जब ग्रो होगा तो सीमेंट में फिर सीमेंट कितने टाइप्स के आते हैं हु इज देयर इन दैट रेंज क्यों उनका ग्रोथ होगा व्हाट इज द कैपेसिटी एंड ये सब ऐसा है व्हाट इज द कॉस्ट तो इकोनॉमी आ गई तो सीमेंट बनाने को क्या क्या लगता है तो उसका कॉस्ट क्या हो रहा है चाइना से कितना सीमेंट आ रहा है तो पूरा अलग हो जाता है प्रबल इट इज वेरी डिफिकल्ट मतलब बहुत बहुत डीप रिसर्च हो जाता है उसमें एंड प्लस तुम सब खुद करोगे तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम राइट जा रहे हो रॉन्ग जा रहे हो किसी एनालिस्ट के अंदर का समझ आता है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग राइट और रॉन्ग वरना तो एआई तो है ही आई गॉट दिस एज एन इंटर्नशिप अच्छा ओके तो एआई है अच्छा आई विल टेल यू अगर करना ही है तो कोई सीमेंट कंपनी अगर रिसेंटली लिस्ट हुई होगी तो उसका डीआरएचपी पढ़ लेना उसका इंडस्ट्री आउटलुक होता है या फिर 3-4 कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेना एसीसी अल्ट्राटेक श्री सीमेंट अदानी सीमेंट इनके सब एनुअल रिपोर्ट्स में पढ़ लेना जहाँ पे तुमको इंडस्ट्री के बारे में डेटा मिल रहा है दैट इज अ थिंग टू डू काफी कुछ चीजें समझ में आएगी उसमें बट 3-4 कंपनी का पढ़ना एक कंपनी के एमडी से कुछ नहीं समझेगा एनुअल रिपोर्ट से एनुअल रिपोर्ट में भी मैनेजमेंट डिस्कस एनालिसिस So we have to pay 1,000 to enter the challenge, and then challenge is for 10 days. Right? Yeah, right. It is for 10 days, and the ones who win will get the internship, and you can tell them about the internship more. So it will be an internship. Okay, specific how an equity research job is. You have to make reports. You have to make financial models. You have to read the conference call. Give me an investment thesis. वही करना है. Automobile update करना है. So see, it is about working. We have a fund. I said, no, I have a fund, which is in my proprietary fund where we invest our money. Since I was an analyst, so you will work as an associate with me. मेरे फंड है मुझे इन्वेस्ट करना है यू लेट मी नो मेरे भी फ्रेंड्स है आई हैव फ्रेंड्स फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स यू नो हु नीड्स टू इन्वेस्ट तो उसके लिए मुझे इंटेंस चाहिए होता है ऐसा है since I'm busy into training so I cannot take a full time I cannot hire someone full time but yeah I do recommend it to my friends sir. So Vamshi, work from home will not be paid then if it's work from home because I want you to work with me. Work from home, as I said, nah, then I will give you my the training which we are doing for free. So समझ लेना that will be your stipend. Okay, because work from home becomes difficult. So it will be like a training for you, Vimraj. Okay, that's like a training. Because see, work from home, the problem is I cannot keep constantly tracking. There are many things, many things. Like there are 2 people from JBIMS, Jamnalal Bajaj, who are interning with me. पर उनके बाद अगर मैं एक दिन नहीं रहूं तो पूरा इधर उधर हो जाता है काम ऐसा है that's why yeah I will share the financial models तो I cannot share I can share the reports तो investment is ऐसे ही लिखा जाता है भाविक investment this is the same way how it is written but उसके पीछे जो thought process है that is very important invest the same like this 1 page report 1 2 3 4 this is how you write
एंड सेकंड पेज पे यूजुअली राइट अबाउट द कंपनी, वो मैं तुमको कल बताता हूँ. एक वैल्यूएशन रह गया, वैल्यूएशन नीचे आ गया. दिस इज माय रिपोर्ट. ये ठीक है, दिस इज नॉट अ वन पेजर रिपोर्ट, बट अगर हमको जब प्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं. अच्छा, if I tell you about the challenge, Aditya, here you have to make a investment thesis, which will include a financial model, which will include a quarterly report, which will include a initiating coverage report. So one report, a quarterly report will be a part of initiating coverage report. So you have to tell me, you have to just pitch me a company, and on that basis, I will ask you questions. So that pitching involves making reports like this, how I have made. So I've sent you all these materials and one financial model for that. Okay, with competitors. It will not be one, it will be 3 to 4 companies. Financial model, if you don't know, we have recordings will be provided to you. You can go through the recordings, plus your CV. When you send me the CV, obviously it should be in a perfect format. That also training will be given to you. So that's a bit of a challenge. तुम कितना जल्दी कर सकते हो, because in 10 days we used to make reports ऐसा, and everything is recorded. Morning session are recorded, evening session are recorded, सब recorded है. तो तुम अभी नहीं अवेलेबल होगे तो recordings तुम सुन सकते हो. And tomorrow there will be a briefing on it, that exactly तुमको क्या क्या चाहिए. But ये चीज मुझे चाहिए कि तुम मुझे, purpose is to present me a company, is up to you. I will not judge you कि तुम fresher हो या तुम non commerce हो. मुझे जो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तुमने जितना रिसर्च किया है वो उस पर मैं तुमको जज करूँ. ओके, एंड रोज अगर कुछ डाउट है तो एवरी डे 10:30 to 11:30 आई एम अवेलेबल. यू कैन आस्क एनी टाइम. ऐसा. इंटर्नशिप पीरियड इज फॉर 2 months. Do you have any other role internship available? No, Vemrash, it's only equity research. और तो कुछ नहीं है हमारे पास. We are hiring for sales executive, but ठीक है, वो nothing to do with finance. Okay. Okay. Any more doubts? We wrap up. Okay, guys. I think we'll stop over here. Great session. I think many of you, I think, got their concepts clear. Fine. Let's meet tomorrow again, 3 to 5. Same link. It will be the same link, no different link. Those who have registered, those who want to register, just ping me on the number. I will message you the details. Okay, 777738865262. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Have a nice weekend. See you tomorrow. Thank you, guys.